Hello, ladies and gentlemen. Just going live now. Uh, Day 2. Sitting at the Pulse Play Digital World Headquarters in the beautiful Dharamshala. Abhishek, I see you on Facebook. So I'm going to be watching maybe, the screen. There are two screens here, two phones here rather, that I'm going to be speaking at. Hi, Rahul is watching. Anybody wants to join in, just send me a request and join in. Guys, I request you to please type in your name, your location, wherever you are watching this from. There is some interesting things that we're working on, and we'll share that in a couple of minutes. Raipur, okay Abhishek, I see you. If you want to join in, please, you're welcome. I've turned on my Instagram handle as well. Sunday, Startup Live, you're still in the office. Me, Shruti, Anup, Sujata, and the kids. The team is obviously on a day off, on the weekend off. So we'll have a full house tomorrow again. Anybody has any questions, please let me know. Anybody wants to share anything, please feel free to do that. Okay, so a little bit of update. We've got a couple of projects coming in Pune, and Rishi, Palampur. Rishi, how are you, buddy? Palampur, we visited. Last time we couldn't make it to your house, to your beautiful house, and you keep sharing a lot of reels, etc. But we'll definitely visit. आंटी जी को प्रणाम बोलना, हमारे लिए भी कुछ लेके आना कल ऑफिस जब आओगे. So there are some projects coming in from Pune and from across India, and we were thinking today whether we'll probably make a trip to Pune. We still need to figure out the logistics and when and how we'll do that. But we are looking at maybe taking a train instead of flight, and probably me, Shruti, Shanaya, Anup, his wife Sujata, and Samaira. It's still not finalized, but I think that's going to happen. With Omicron, etc., I don't know. You guys need to kind of fill me in as to is it safe to travel, etc. But there are probably about 4 or 5 clients of ours in Pune, so they want to meet and we want to discuss, etc. plans for 2022. A lot of exciting things happening. We've onboarded another client, a net new client from Delhi. So that's great, and we really love working with the client. We have a friend of ours in the US that has entrusted us with their B2B digital mandate, so we're working on that as well. I'm going to look towards the board here. There is another client in Pune that we need to finalize on, so that's probably one of the main reasons we are traveling to Pune. Again, D2C e-commerce. There is another client that we're working on, a project we're working on. The team has done a great job on a handicrafts business in Mumbai. And I don't know whether we'll make the stop in Mumbai. If we travel from, I think from Pathankot to Mumbai in train, we'll get down in Mumbai, and then I think it'll be fun to have at least Shanaya, my daughter, and her cousin Anup and Sujata's daughter Samaira travel together in a train. I think these days AC2 is also pretty comfortable, and we just want to experience that for ourselves, and it'll also give us some time probably to think and again strategize as to what we want to do in 2022. I don't know, a couple of days back I did a live session where we brought you into what
plans we are working on in 2022 and where we have been in 2021 with Pulse Play team. So we kind of an open book. If you have any feedback, suggestions, let us know. There are obviously a couple of other sites. There is one Ocuplasty site and client that we're working on. Let me see. There is another consumable brand that we're talking to right now that we want to take their brand, D2C and do the digital mandate, etc. So good things are happening, and thanks for keeping us in your list, reference, top of mind, recall. We appreciate it because every help kind of goes back to building the business and making sure we pass on the benefits to the teams that we're building here. And I don't know if you were tuned in. We talked about expanding the existing kind of office. So room number 2 will be open starting probably tomorrow, and we're going to order furnitures, etc. And then probably Ranjit's team, the technical team, will move into that room, and creative will sit on this side, Anup's team. There's a content writer, experienced content writer. She has accepted. She's going to join on I think starting Feb. We have hired a video editor. I think he's starting, I don't know, tomorrow. There's an intern who might come in tomorrow. So if they come in tomorrow, we'll probably get them in and maybe get them on the video. Sorry, I'm looking at two different kind of screens. One is put on the table here, and one is actually on that the stand. So I'm kind of looking disoriented, looking at two screens. But I'm probably going to need to have maybe one more stand where I can run Facebook, and I know there are a lot of softwares that you can run parallel sessions. But I just want to with all the imperfections, we want to go live and we want to do this, right? So as I said yesterday, let's not wait for a perfect opportunity and a perfect, all the stars aligning and just hiding behind excuses, etc. I think one of the things the startup mentality calls for is just taking the plunge, right? Priyal Oki, hi Priyal. It's a happy new year to you and your family. Thank you. Happy new year to you as well. So I'm going to stop now. So that's a little update. We might take a train ride. That will be exciting, and I'm going to know if that happens. We will put the entire map of all the stations. So if you guys are in any of those stations, or if you want to meet and come say hi, would love to meet you at the stations. But let's wait. Maybe in a day or so we'll confirm that. And wouldn't it be great to just even get to meet you, or I don't know, maybe while I'm passing through your station, maybe we'll do a live session. You don't have to come to the station if if you're not obviously available, but we can probably get you on and you can talk about the local delicacies, etc. So it's obviously not optimal in terms of we can't get out of the station much and explore India. That's one of my dreams, that we want to take the family, friends, maybe the whole team of Pulse Play. Pulse Play has been the team has been internally talking about taking a train ride or booking taking a couple of dongles and kind of going on a ride where we take the whole work with us, right? And we travel, we work, we kind of visit client places where as a team, and do both travel and work together. So kind of a mobile digital studio, right? Wouldn't that be great? That's one of the dreams that we have. So with Omicron, etc., we haven't started doing that now, but we want to do that at some point. Some people have DM'd me yesterday. कुछ लोगों ने बोला है कि सर आप हिंदी में भी बात करो, तो मैं हिंदी में भी बात करता हूँ. तो देखते हैं, ये हमारी कुछ
एज एक टीम की तरह एक सपने हैं हमारे जो हम इस पे निकले हैं। और PKT ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। तो ट्रेन राइड के ऊपर हमारी एक ट्रेन राइड होगी। ऑब्वियसली पर्सनली मैं पापा मम्मी से मिला नहीं हूँ काफ़ी दिन से, पुणे में है वो, सो उनसे भी मिलना होगा। और पुणे में क्या किया जा सकता है, इफ़ यू वांट टू कम मीट, आई डोंट नो ओमिक्रॉन का क्या सिचुएशन होगा, तब तक मिल सकते हैं, आइडियाज़ हैं शेयर कर सकते हैं। हम तो वहाँ पे पर्सनल और बिजनेस ट्रिप दोनों करने आ रहे हैं, अभी प्लान हो रहा है। ये प्लान अभी हमने टू बी ऑनेस्ट पल्स प्ले टीम को भी बताया नहीं है, बट दे काइंड ऑफ नो कि अनुपन, सुजाता और समायरा वो प्लानिंग, बट हम सोच रहे हैं अभी मैं भी, शायद मैं, श्रुति और शनाया भी जा सकते हैं, बिकॉज पापा हमसे मिले नहीं हैं, हम काफ़ी महीने हो गए। तो आई थिंक द टीम इज़ इन इनक्रेडिबल फ्लो नाउ, द टीम इज़ सेट एंड they really don't need any spoon feeding with Ranjit and everybody else taking on the mantle. So that's what we want to do, right? We want to build a platform for freedom. We want to build an incredible digital studio. In a couple of days, maybe once our architect is here, we'll share you some plans of what we're planning to build in Dharamshala in terms of the Web 3.0 डिजिटल स्टूडियो, वहाँ पे क्या काम होगा, किस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं, फेज़ वाइज होगा, ताकि हम खुद पे स्ट्रेस ना डालें ज़्यादा, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो हम लोग ये बिल्ड कर रहे हैं। अभी सर्विसेज आपके सामने पूरी किताब खुली हुई है, सर्विसेज प्ले है, सर्विसेज करेंगे, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स, टेक, को-टेक। Then we'll keep moving towards building products, building 5 unicorns, and then building platforms, taking it to India, Bharat, and then ये ट्रेन राइड इसलिए भी है कि एक ब्रेक लेंगे। हम लोग बैठे हैं अभी धर्मशाला में, Tier 2 या Tier 3 सिटी कहलाई जाती है। जब जाएंगे तो एक भारत दर्शन भी होंगे और बच्चों के साथ भी थोड़ा मेमोरीज बिल्ड करेंगे। दैट वाज, ये हमेशा हमारे एजेंडा में था और गोल था कि हम जाएंगे। आई नो कि ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि पठानकोट से डायरेक्टली ये मुंबई जाएगी, फिर वहाँ से मुंबई से मे बी एक आई डोंट नो टैक्सी या कुछ करके, या कोई फैमिली मेम्बर हमारे आ रहे हैं शायद लेने को, तो वहाँ से फिर पूरा हम प्लान करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो आपका शुक्रिया कि आप आपका समय यहाँ पे दे रहे हो और हमारी अपडेट्स ले रहे हो। तो ये तो हमारी तरफ से हो गई अपडेट। अगर आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं या आप कुछ चाहो, कोई हेल्प चाहो, तो प्लीज़ हमको बोलें। एनीथिंग वी कैन हेल्प, जो भी हमारी शक्ति में, हमारे पावर में, हमारे नेटवर्क में हम कर सकते हैं, आप बोलो। हमें बहुत खुशी होगी कि हम लोग ये एक पल्स प्ले की एक स्टार्टअप जर्नी पे चल रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी हम कुछ कर सकें प्रोफेशनली। let us know how can we help you achieve your dreams, right? Maybe हम लोग काम ना करें साथ, लेकिन maybe कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं, right? So अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं देख रहा हूँ इंस्टा में अभी 7 लोग ज्वाइन हैं, उनका नाम लूँगा। भूपेंद्र, पार्ट ऑफ पल्स प्ले टीम, हाय भूपी। निखिल, प्रतीक, हर्षित, उमेश, रंजीत, वामसी। अच्छा रंजीत, आई डोंट नो पूना में आप होंगे नहीं होंगे, मैं पुणे का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। अभी आपने ज्वाइन किया तो मैं बता देता हूँ आपको, पुणे का ट्रिप प्लान हो रहा है। यहाँ पे फेसबुक में कैसे देख सकता हूँ मैं कौन कौन है, देखता हूँ एक मिनट। अभिषेक और लामू, राइट। लामू इज़ माई ब्रदर्स वाइफ and Abhishek is one of my junior alumni. पवन भी ज्वाइन की। हाय पवन। हेलो सर। अच्छा कौन है? अच्छा भूपी बोल रहे हैं। हाय उमेश, हाय हाय, हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ यार, कैसा लग रहा हूँ? रोज़ तो आता हूँ आपके स्क्रीन पे। विकी, आई एम इन पुणे। अच्छा विकी, मिलते हैं यार, हम प्लान कर रहे हैं पुणे आने का। पता नहीं ओमिक्रॉन अलाउ करेगा नहीं, मे बी अ गेट टुगेदर और नो, बट आई डोंट नो। वाइल इन पुणे विल एटलीस्ट टॉक ऑन द स्क्रीन, और एटलीस्ट कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं। देखते हैं क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। मैं मम्मी पापा को मिलने आ रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा
लुल्ला नगर एरिया में रहते हैं, तो मैं उसी एरिया में रहूँगा पापा मम्मी के घर पे। तो ऑब्वियसली तो ये प्लान्स हैं। यादव मुस्कान जी नमस्कार, कहाँ से हो आप लोग? मेरे को यार लिखो आप लोग ना, यहाँ पे टाइप करो कि आप लोग कौन सी सिटी से ज्वाइन कर रहे हो। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं ट्रेन राइड लेने की, देखते हैं मज़ा आएगा। ट्रेन में भी लाइव करेंगे। फ्लाइट में तो एक बार घुसे अंदर तो ओके, विल ट्राई टू मीट विकी। ठीक है विकी, मिलते हैं अगर आप हो पूना में तो मज़ा आएगा। एंड डे 2 है, होपफुली ट्रेन में कनेक्शंस मिलेंगी और ट्रेन में भी लाइव करेंगे, दोनों इंस्टा हैंडल पे भी और फेसबुक पे भी। आई एम फ्रॉम इंदौर। अच्छा मुस्कान, इंदौर में हो आप? पता नहीं हमारी ट्रेन इंदौर में रुकेगी नहीं रुकेगी, लेकिन हम चल रहे हैं, निकल पड़े हैं। धर्मशाला से पठानकोट जाएंगे 2 घंटे इन अ कार और समथिंग, और उसके बाद फिर पठानकोट से मुंबई से फिर पठानकोट टू मुंबई ऑब्वियसली ट्रेन में। उसके बाद फिर मुंबई पुणे विल बी ऑन गाड़ी। हाउ डू यू सी इंडस्ट्री इन 2022 एंड ओमिक्रॉन इफेक्ट इन दिस ईयर इकोनॉमी? अभिषेक पूछ रहे हैं ऑन फेसबुक। अभिषेक बढ़िया क्वेश्चन है। सी द वे I think the writing is on the wall, and what we've been seeing, can you imagine? It's been 2 years. It's been actually 2 years of the corona pandemic virus, right? And a lot of brands have had to rechange their entire strategy and presence, right? I'll tell you, in the last 1 year, we worked with about 16 different brands. Okay. When I say 1 year, the company has been into existence since 25th of January. We were open for business on the 29th of April. So actually, if you really look, 8 months, right? From May till December. And what we've seen is pretty much every brand is going direct, is trying to go direct to consumer. There are brands that are spending a ton of money. So we've seen the budgets also increase. In terms of digital spend. Now I'm talking in terms of digital spend, right? I'm not talking about the life of a citizen. So I'm talking about from a digital economy standpoint. The digital economy is incredibly growing. Omkar, hello Deepak sir. Omkar this side from SBP. Hi Omkar. So I see a tremendous growth opportunity for everybody and anybody, any brand or an individual in digital space, right? No matter who you are, if you look at what is happening in the Web 3.0 economy, the world is shifting towards metaverses of the world, and obviously people are talking about making it an independent framework and ecosystem, but time will tell what happens, right? So what does it mean to all of us? Number one, obviously same things. Health is a priority no matter what, immunity and all that, safety. Companies and brands, they want to reach to the customers either to mediation of a platform, and they want to continue growing their customer base to tier 3, tier 4 cities. We have actually shifted a lot of our budgets from tier 1 to tier 2, tier 3, tier 4, right, for the clients that we're working on. But there's still, obviously, you still have some kind of proportion that is being spent on tier 1. You can't, ignore that. But the readiness of brands to spend on these other, audiences or Bharat is happening big time. I don't know whether you wanted that kind of context. What will happen to the economy? Look, I don't know what will happen to the economy, but I don't think the virus. So economy works from what, right? Number one, economy works from the way the commerce and commercial economy has been defined is based on consumption. Consumption कहाँ से होती है? Consumer से, right? दो तरह की कंजम्पशन है. एक कंजम्पशन है essentials, जो आपको करनी ही पड़ेगी, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान. दूसरा है aspirational consumption, right? या lifestyle जिसको कहते हैं, या
या once you go above your kind of you met your means, उसके ऊपर क्या है, right? So aspirational consumption, obviously, India, if you look 350 million odd people, they'll continue to buy, right? I don't think the virus has been able to wipe off the populations. Let's say if you just talk about India, it will never be able to do it. I think no virus can do it. Touche or touch wood, hopefully, right? The civilizations will continue to survive. So I don't think we need to be finicky about what will happen. किसी ने request भेजी, मैं accept कर रहा हूँ on Facebook. हर्षदीप उपाध्याय. So Harshdeep, I'm accepting it. If you can join, great. While you come on, so Abhishek, that is this thing, right? I'm incredibly positive. There's a lot of things happening. People will need roti kapda makan, basic necessities. उसके ऊपर lifestyle आ गई. वो तो depends, कहीं पे dip होगा, कहीं पे increase कर जाएगा. So there's travel, there's revenge tourism, travel tourism देख रहे हो, it's going up depending on what happens now. So ये सब चीज़ें. Do you feel 2019 pre-COVID industry will come back in 2022? Absolutely, and even more. See, the consumption just shifts, right? The channel shifts. The consumption is still there. Population is still there. सबको खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है. Educate भी अपने बच्चों को करवाना है, right? So I don't think it's ever going to go down as far as you have consumption, the demographics that is happening. Ritesh, hi bhai. Ritesh, happy new year, thank you. Happy birthday, belated birthday. कल birthday था आपका शायद. I forgot to give you a shout out. So that is my take on what I see in terms of economy. And see the question about economy needs to be contextualized, right? So Arpit bhi bol rahe hain, totally agree with you. Thank you Arpit. Hi Supriya, how are you? आओगे आप online? आइए, if you can. I think what I think is, again, welcome bro. So what I think is, see, there are two types of economies. दो तरह की इकोनॉमी है. एक तो तुम्हारी पर्सनल इकोनॉमी है, which you have to understand कि आपकी पर्सनल इकोनॉमी कैसे कर रही है, right? So let's say, and then there is obviously the outside economy in general parlance, देश की इकोनॉमी ले लो या वर्ल्ड की इकोनॉमी ले लो या कोई स्टेट की ले लो, इंडस्ट्री की एक्सेप्ट ये ले लो. सो मेरा ये कहना है कि भाई ये क्वेश्चन ज़रूरी है कि अगर आप एक इकोनॉमी हो तो आप कैसे कर रहे हो एज ए इकोनॉमी. हाउ इज़ योर फाइनेंशियल्स लुकिंग, राइट? एंड इफ यू हैव अ गोल ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मेकिंग श्योर यू डोंट live paycheck to paycheck, and there's nothing wrong in living paycheck to paycheck, right? सबको करना है शुरू, लेकिन आपको कुछ और भी करते रहना है. स्किलिंग अपस्किलिंग करनी है, डिजिटल स्किल्स उठाने हैं, क्रिएटिव स्किल्स उठाने हैं. कहाँ डिजिटल जा रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे. अगर आप लेट्स से, अगर आप अभिषेक, मेरे को पता नहीं आप कितना कमा रहे हो, लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग लेट्स से 100 रुपीज़, राइट? 100 रुपये आप कमा रहे हो महीने के. 100 रुपये से अगर आपकी रंजीत, मैं अभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे खुद ही के पता नहीं आपने मेरी लैंड देखी होगी धर्मशाला, उस पर मैं शुरू करने वाला हूँ और मैं उसकी अपडेट दूंगा. तो आर्किटेक्ट से मेरी बात हो रही है. पूना में नहीं कर रहा हूँ रियल एस्टेट, मेरे खुद के प्रोजेक्ट पे. व्हेन यू से प्रोजेक्ट, आई एम इन्वेस्टिंग इन माई ओन काइंड ऑफ रियल एस्टेट दैट वी ओन इन धर्मशाला. वी ऑल्सो हैव अ प्रॉपर्टी इन पुणे, उसमें कुछ कर नहीं रहे हम लोग. प्रोजेक्ट एज इन क्लाइंट्स हमारे अभी तक रियल एस्टेट की एक क्लाइंट है यूएस में जहाँ पे हमने पिच किया है लेकिन साइन अप नहीं किया है फ्रॉम अ पल्स प्ले स्टैंड पॉइंट, जहाँ पे डिजिटल ब्रांडिंग की कंसल्टिंग हम देंगे. सो अभी तक शुरू नहीं किया है रियल एस्टेट की. अगर क्या पूछ रहे हैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में, रंजीत इज आस्किंग ऑन इंस्टाग्राम. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक राय 9 ऑन इंस्टा, एंड आई ऑल्सो हैव अ फेसबुक पेज. सो एनीवे सो कमिंग बैक टू दिस पर्सनल इकोनॉमी थिंग, राइट? तो आपकी पर्सनल इकोनॉमी क्या है? लेट्स से अगर आपका इनकम सोर्स आज बंद हो जाता है तो क्या आप 24 महीने गुजार सकते हैं रोटी कपड़ा मकान और बेसिक आवश्यकताओं को लेकर? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन.
सो मैं अगर देखूंगा फ्रॉम योर लेंस, अगर अभिषेक ने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी है एंड गुड फॉर लीडिंग ऑन टू मी टू दिस थॉट. When I was building my career back in US, a couple of my mentors always told me, don't worry about the world economy, कोई किसी देश की इकोनॉमी एक्सेट्रा. वरी अबाउट कि आपकी पर्सनल इकोनॉमी कैसे कर रही है. डू यू हैव इनफ इन योर बैंक अकाउंट दैट यू विल सस्टेन यू एंड योर फैमिली इफ यू हैव अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एटलीस्ट 24 months. That is the kind of, begin with 6 months, 12 months आप ले लो, फिर 24 महीने ले लो, फिर उसको मल्टीपल्स करो 48 months, फिर उसको ले लो 5 साल क्या रह सकते हो विदाउट इनकम के. आपकी करंट लाइफ स्टाइल की आप सस्टेन कर सकते हो, राइट. एंड देन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विथ मनी, राइट. उसकी तो मैं अलग टॉपिक और सेशन लूँगा. मनी, आर यू एन इनक्रेडिबल गुड कस्टोडियन ऑफ मनी? सो पैसे सेव करके क्या आप जानते हो री इन्वेस्ट कैसे करना है, और आप क्यों करोगे और किस तरह से करोगे? अगर आप कपल हो, न्यूली मैरिड कपल हो, अगर सिंगल हो, एजुकेशन लोन है आपके सर पे, तो उसको कैसे उतारना है आपको? एंड हाउ आर यू पार्टिसिपेटिंग नॉट जस्ट एज अ कंज्यूमर बट एक्चुअली एज अ प्रोड्यूसर एंड एन इन्वेस्टर वाइल यू स्टिल काइंड ऑफ लर्निंग. अभिषेक तिवारी बोल रहे हैं. अच्छा, थैंक यू अभिषेक. तो अभी मैं देख रहा हूँ 10 लोग हैं इंस्टाग्राम पे और 3 लोग हैं फेसबुक पे मेरे हैंडल पे. तो सर आई बिलीव देयर शुड ऑलवेज बी अ पैसिव इनकम. एब्सोल्युटली अर्पित, आई कैन नॉट अग्री मोर टू दैट, राइट. एब्सोल्युटली यस. अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज ही हम बात कर रहे थे, मैं, श्रुति, मेरी वाइफ, मेरे भाई अनूप और उनकी वाइफ सुजाता, कि 11 साल पहले जैसे मैंने तो 2011 में मेरी और श्रुति की शादी हुई, राइट. सो हमने कुछ सोना खरीदा उस वक्त चल रहा था शायद मेरे ख्याल से 28,000 या 29,000 पर तोला. अभी कितना है? 48 या 49, आई डोंट नो, लेटेस्ट मैंने देखा नहीं, मैं चेक भी नहीं करता. बट इन्वेस्टमेंट्स इन prop asset classes that are stable, and I know it is not a passive income, but something that appreciates, right? Something that holds value and will give you value in a couple of years. So if we can go from if you bought something, and we bought a lot of gold at that time, जिसको हमने वो सब ये करके किया, that is an incredible asset. That's just an example. फिर हमने लैंड में इन्वेस्ट की. Now this is not to boast about myself, but I'm just saying that are you a good custodian of your money? We didn't invest in flats because flats को हमको लगा कि you're taking a huge amount of money and then blocking it for a long time, and then खुद के रहने के लिए अगर लो तो ठीक है, लेकिन मेरा उसमें भी थोड़ा अलग है मत. अगर आप यंग हो, ये इसीलिए ऐसे सेशंस में एकदम पॉइंटेड किसी को सजेशन देना थोड़ा मुश्किल है कि आपको क्या करना चाहिए. मैं आपका अगर फाइनेंसेस जानता हूँ या कोई आपका मेंटर जानता है, तो आपको फाइनेंशियल वो कंसल्ट मतलब एक मेंटरशिप दे सकते हैं कि आप फाइनेंशियली कैसे ग्रो करोगे, है ना. बिकॉज हमको पता नहीं आपकी P&L कैसी है, आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, आपकी पर्सनल इकोनॉमी. बाकी सब, हाँ, ये भी सच है कि ऑब्वियसली पर्सनल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी एंड job economy, or economy of the nation that you live in and earn in. But ultimately it depends कि भाई खुद की आपकी तैयारी कैसी है. मेरे को याद आ रहा है 2009. सो मैं बताता हूँ आपको. तो 2001 में मैं हमारे बिलवड फाउंडर ऑफ आवर अल्मा मैटर श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे, बाला सर का फर्स्ट बैच था हमारा 1999-2001. 2001 में वर्ल्ड क्रैश्ड, द इकोनॉमी क्रैश्ड. जो हम लोग अभी अगर दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट, व्हेन यू हैव थोड़े आप जी चुके हो ज़्यादा ऊपर वाले की दया से, तो यू हैव सम एक्सपीरियंस. तो 2001 में हम लोग स्टूडेंट की तरह जब हम निकल रहे थे, प्लेसमेंट्स को जा रहे थे, तो 9/11 हुआ, ऑनलाइन ने हुआ, तो आपको सबको पता ही है वर्ल्ड क्या हुआ, राइट. एट द सेम टाइम इकोनॉमी, द इंटरनेट इकोनॉमी ऑल्सो वेंट बर्स्ट. देन कट टू दैट, मैं 2004
सो इमेजिन बाला सर की वजह से 2001 में मैं ग्रेजुएट हुआ, MBA PGDM किया। उस समय PGDM था, MBA डिग्री नहीं कहला जाती थी। उससे निकला मैं अप्रैल 18 को 2004 मैं पहुंचा। जेब में मे बी $50 $100 पता नहीं कितने थे, वो भी कहीं से किसी के उधार लेके। टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास, राइट, क्योंकि घर को सपोर्ट करना था। ये वो मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं भी बाद में कुछ बताऊंगा। तो वो पैसे लेके मैं पहुंचा वहाँ पे। एंड 2009 मैं वहीं पे था जब ये कैलामिटी हुई, फिर से जब इकोनॉमी बस्ट हुआ, राइट। तो फॉरगेट, दिस इज प्री पेंडेमिक, लाइक इकोनॉमी गोइंग डाउन। तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। और जब मैं एक्चुअली न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एरिया में, ट्राई स्टेट एरिया में रह रहा था। तो मैंने जो देखा, I saw people walking out of the buildings with, you know, their boxes, or, you know, people, thousands of people getting fired, right? When we started hearing on the news, कि, you know, a couple of banks have gone down, etc. So I've seen that as well. But उसमें भी I was able to sustain. And उसमें मैं मज़ेदार आपको कहानी बताता हूँ. Do you have the humility and do you have a support network of friends or group of few people whom you can totally depend and rely and take mentorship from, right? You have to build those relationships. और मैं वहाँ पे उस समय एक नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रुप था वहाँ पे, and thank God for them. They mentored me and they knew about my finances, मैं क्या कर रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले स्केल डाउन किया। मैं प्रोजेक्ट कंसल्टिंग कर रहा था अपने बलबूते पे। I think Kraft let go. Maybe I should not have said the name, I don't know. Kraft, I was working with Kraft and Kraft fired me, right? So I've nothing wrong, but I'm not blaming anybody. But I had built enough finances. मेरे कुछ habits नहीं थे, ये वो, you know, I was just focused on my goals, my financial goals. तो I could sustain. लेकिन मेरे मेंटर्स ने बोला मेरे को, यार तू तो बैठा हुआ है, तेरे पास देख भी रहा हूँ, पैसे भी तेरे पास है, यू कैन सस्टेन ईजिली, बट हाउ आर यू कीपिंग योर माइंड गोइंग, राइट? घर पे बैठने से क्या होता है, इंसान फिर ना अपना कुछ अलग सोचेगा। मैं तो रीड करता था, आई हैड लॉट ऑफ बुक्स, अभी भी रीड करता हूँ। और बाय द वे, आई हैव श्रुति हैज ऑर्डर्ड मी 2 more books for me to read. This is number 1, The Lessons for a Post-Pandemic World, फरीद ज़कारिया। ये अंबानी के रीडिंग लिस्ट में है, मिस्टर मुकेश अंबानी के। तो आई थॉट दैट आई शुड रीड व्हाट ही इज रीडिंग। एंड दिस इज अनदर वन, द रेजिंग 2020s, कंपनीज, कंट्रीज, पीपल एंड द फाइट फॉर अ फ्यूचर, एलेक रॉस। सो आई थिंक दिस इज अनदर गुड बुक. Nobody has paid me to talk about this. अच्छा, अभिषेक बोल रहे हैं फेसबुक पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्रैवलिंग, मीटिंग पीपल, ओनली नेटवर्किंग इज मेजर स्किल वी हैव. सो हाउ वी कैन जनरेट पैसिव इनकम बीइंग इन सेल्स गाय. मैं बताता हूँ अभिषेक, बहुत सारे जरिए हैं. एक तो अच्छा, मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ. देन मेरे को माई मेंटर सजेस्टेड, यार तुम कुछ भी करो काम, जस्ट टू कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड यू बीइंग ऑन द फील्ड एंड लेजी, जो लेजीनेस के ट्रैप में मत आओ. मेरे को नहीं लगता पहले मैंने किसी से शेयर किया ही है. तो मैंने फिर देखना शुरू किया एड्स वगैरह कुछ. आई वाज स्टिल कंसल्टिंग रिमोटली, कुछ कर रहा था, SAP का प्रोजेक्ट एक्सेट्रा. लेकिन मेरे पास टाइम था, तो बोला तुम लोगों को मिलो, जाओ कुछ करो. तो मैंने एक्चुअली आई वर्क वन ऑफ द फ्रेंड्स फ्रेंड जो न्यूयॉर्क में है, उनका अपना टैक्सी का बिजनेस था. तो बोले दीपक देख, मेरे पास तो कुछ SAP और या तो डिजिटल का कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे पास टैक्सी है, तेरे को चलाने आती है गाड़ी, तू ये ले और तेरे को इतने पैसे मिलेंगे. तो मैंने एक्चुअली अपना, और वो टाइम पे आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि माई वन ऑफ द ग्रुप्स हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू न्यू जर्सी into one of the businessman's house. तो उनको एक I think टेम्पो चाहिए था, जहाँ पे वो एक टोली ले. I don't know whether you've heard, there was one Mr. चंचल जी थे जो माता जी का जगराता करवाते थे.
तो वो उनके साथ कुछ उनका ट्रुप आया था कुछ 8-10 लोगों का। तो उनको चाहिए था कि वो पूरा न्यू जर्सी से डेलावेयर से वॉशिंगटन स्टेट और फिलाडेल्फिया ये सब करके फिर से न्यू जर्सी आए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं गया, रेंटल वो गाड़ी ली, लाइसेंस था, और बड़ा वो ट्रक लिया और सबको बिठवाया। और चंचल जी तो वो जो उन्होंने जो गाना गाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो मैं उनके जगराता करने के लिए मैं आई बिकेम अ टैक्सी ड्राइवर। सो वो टैक्सी, वो जो बड़ा वो ट्रक लेके, टेम्पो लेके, और चंचल जी का पूरा ट्रुप मेरे साथ बैठा था। पता नहीं अभी वो चंचल जी कौन पहचानता है उनके ट्रुप में, वो मेरे को देखेंगे तो शायद पहचानेंगे। 2009 की बात है, न्यू जर्सी। तो मैं चल पड़ा और माता रानी का ही ये था, ब्लेसिंग्स था। और उससे भी बहुत बड़े मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं उसके बाद फिर मैंने वो एक ट्रिप लिया। फिर ऐसे कुछ बारातों को लेके आना, बड़ा ट्रक चाहिए था, किसी को ड्राइवर चाहिए था, मैंने वो भी किया। कैश मिलते थे, बढ़िया कैश लिया। तो मैं घर पे बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने आपको करना है, राइट। आज डिजिटल हम लोग बात कर रहे हैं ये वो, बट इन द फिजिकल वर्ल्ड ऑल्सो इन 2019 when I was still sitting in a lot of money, but because my mentor told me, I had a mentor जिन्होंने बोला यार तू, तेरा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, you should go, you should not become lazy, you should go in the hunt, you should meet people। तेरे को अगर टैक्सी ड्राइवर भी बनना पड़े, ऊबर भी चलाना, वो टाइम पे तो ऊबर नहीं था, आज की तारीख में पैराफ्रेज करके, अगर वो भी करना पड़े तो बैठ जा, कमा। मतलब आपको एक्टिव रहना है, आपको सुबह उठ के यू शुड लुक डू समथिंग, राइट। तो थैंक यू फॉर दैट मेंटरशिप। एंड मैं भी अगर एक दिन कभी टाइम होगा तो उनको भी लाऊंगा। देन मैंने न्यू जर्सी में एक कारमेन्स पिज़ेरिया है, आप लोग ढूंढो, फेसबुक में उनका पेज भी है, मैं कभी कभी लाइक करता रहता हूँ। उनका एक ऐड देखा, तो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स जिसको थे, टैक्सी ड्राइवर का जो प्रोजेक्ट था, मेरे को तो मज़ा आता था, लोगों से मिलना और बात हो रही है, और जान पहचान हो रही है। और अकेला था मैं, घर पे बैठ के भी बोर, कितना पढूं, बुक भी कितना रीड करूं। तो उसके बाद हुआ कि मेरे को पता चला यार ये रंजीत ने ज्वाइन किया। हाँ रंजीत, ये बहुत अच्छी स्टोरी बोल रहा हूँ मैं, यूएस की मेरी। और माइंड यू, मेरे पास लिटरली आई कुड हैव सस्टेन फॉर अनदर 3 years विदाउट अ सिंगल पेनी, सिंगल इनकम, ठीक है। दिस इज 2009 में। बट दिस इज अबाउट, मेरी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हाउ डू यू लुक एट पर्सनल इकोनॉमी, कि आपकी पर्सनल इकोनॉमी क्या होनी चाहिए। बाहर की इकोनॉमी चिंता मत करो, वो भी आपके आंख कान खुले होने चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें जब करो तब करो, और बुद्धिजीवी मत बनो आज की तारीख में। थियोरटिकल, प्रैक्टिकल क्या है, कैलकुलेट। आपको पता है हर महीने मेरे इतने खर्चे होते हैं, क्या मेरे पास इतना पैसा है बैंक में, अगर मेरी नौकरी या सोर्स ऑफ इनकम या इनकम सोर्स चला जाए, मैं क्या 24 महीने मेरी फैमिली का और मेरा क्या ख्याल रख सकता हूँ। दैट इज हाउ यू शुड लुक एट फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। सिंपल है, आज के प्राइसेस कितने हैं, 2 साल में कितने जाएंगे, क्या है मेरा इन्फ्लेशन कितना जाएगा, राइट। तो वो आपको लेके रुकना है, उतनी तैयारी है। फिर देखो आपकी, या तो तैयारी कैसे होती है आपकी, देखने का नजरिया बदल जाएगा। अच्छा, तो कारमेन पिज़्ज़ेरिया का बात कर रहा था, तो एक मैंने पिज्ज़ा का ऐड देखा। तो एक दिन मैं चला गया भाई कि ये काम था पिज्ज़ा डिलीवरी का। एंड माइंड यू, आई एम एन MBA, वर्क फॉर Deloitte, IBM, and did consulting projects, making अभी मैं पता नहीं ये बोलूँ या नहीं, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो लिटरली इफ यू वांट टू नो हाउ मच मनी आई वाज मेकिंग, यू कॉल मी और DM मी, आई लेट यू नो। तो पैसे मैं कमा रहा था ऐसे, लेकिन मेरे मेंटर ने बोला भाई तू बैठ मत, लेजी हो जाएगा, यू हैव टू गो ऑन अ हंट, यू हैव टू डू समथिंग, बैठने का नहीं है। ठीक है, तो मैं चला गया पिज़्ज़ा डिलीवरी। तो वहाँ पे गाड़ी थी मेरी, तो मैं मेरी गाड़ी में पार्किंग लॉट अभी भी याद है, मेरे पास एक्यूरा थी और अपने पैसे से ली थी, माँ बाप के पैसे से नहीं। एक्यूरा ली थी वो टाइम पे, होंडा एक्यूरा, और लग्जरी कार, राइट, जहाँ पे सीट वगैरह आराम से वो ऑन कर दो आप बटन, गर्म होता था सीट, लेदर हीटिंग। इट मेंट अ लॉट इन न्यू जर्सी बिकॉज वहाँ पे स्नो वगैरह होता था। तो वो कारमेन पिज़्ज़ेरिया के मैं पार्किंग लॉट में गया, तो वहाँ पे कांच था, तो वो ओनर जो अंदर था काउंटर पे रुका हुआ, वो देख सकता था कि कस्टमर कौन आ रहा है बाहर। तो मेरी गाड़ी देखी उसने और मैं अंदर गया,
और मैंने बोला हाय बरी, आई कम फॉर अ जॉब, यू एडवर्टाइज फॉर अ डिलीवरी बॉय हु हैज़ हिज ओन कार. सो ही वाज सरप्राइज्ड. बोला दिस इज योर कार? बोला हाँ, दिस इज माई कार. आई यू श्योर दिस इज अ लग्जरी कार, यू गोना गो ड्रॉप पिज्जा इन दिस? या definitely, definitely, there's no problem, I just want to be on the road. But फिर उसने बोला yeah, you'll get, मेरे ख्याल से दिन के मेरे को उसने दिए, if I don't know whether I remember correctly, maybe $15 or $20 a day. डे भी कैसा, 2 घंटे की डिलीवरी होती थी. एंड जो टिप मिलता था, यू गेट टू कीप द टिप. ठीक है, कस्टमर टिप देगा आपको कैश. And then tip मिल जाता था. You used to get a tip for yourself. And then thank you Sagar for listening. I hope इससे कोई कुछ सीख सके. मेरे को पता नहीं क्या सीख मिलेगी, बट ये मेरी मेमोरी ताज़ा हो रही है यहाँ पे. तो tip I used to keep, and I used to be so good क्योंकि I'd learned the hard way, treating people nice and being nice to people, being friendly, smiling, etc. So जब भी मैं जाता था तो they used to call my boss and give him a feedback कि boss, this guy is great, this guy has delivered a pizza at my office, and whoever this guy is great. उनको क्या मालूम था, and I was making corporate pitches for $300 million project, right? So these are some facets we have probably not shared in any of the platforms or occasion, but I thought, look, let's be an open book. And anyways, that's my style. There's no script. So तो वहाँ पे क्या होता था, you have to deliver a pizza. This is 2009, at the height of all this people getting fired, etc. But remember, again, I remind you, people are joining late. I had the money to sustain for 3-4 years without any problem. But my mentors told me, nahi bhai, you be in a hunt. You go, you do something. Do a job, get something. Get out of the house. Don't be sitting, in the house. Lazy, आराम से गोदड़ी वगैरह पहन के सो रहा है. डोंट डू दैट. तो न्यू जर्सी में हो रही बात ये. और मैं, इफ़ आई मेक अ ट्रिप अगेन टू न्यू जर्सी, आई विल गो टू द कार्मेन्स पिज़ेरिया जो न्यू जर्सी में है. और मैं उनसे, वो ओनर से भी मैं बात कराऊंगा कभी. ही इज़ एन इटालियन गाय, ग्रेट पिज़्ज़ा. तो वो बोला देखो 2 घंटे में $20 दूंगा, और पेट्रोल तेरा, गाड़ी तेरी. वो तो था अपने पास, लग्जरी गाड़ी थी. एंड जब मैं कस्टमर्स के इसमें जाता था तो सम डेंटल शॉप, सम स्कूल, सम दिस थिंग, दे यूज्ड टू सी माई कार कमिंग एंड दे यूज्ड टू बी सरप्राइज कि उससे बाहर निकल रहा है पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, अपना पिज़्ज़ा का बॉक्स लेके आ रहा है, उसको पिज़्ज़ा दे रहा है. एंड इट वॉज एन इटालियन शॉप. तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, तो उनको, आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, नाम क्या है उसका, इटालियन बंदा था. मेरे इसमें फ्रेंड लिस्ट में भी है वो, मैं देखता हूँ उसको, आई लुक हिम अप. Then there was a competition in that pizza delivery also. Delivery में क्या होता था, सबके पास अपनी अपनी गाड़ी थी. मेरे पास भी अपनी गाड़ी थी. तो you get a chance, जैसे ही कॉल आता था उनको, so 11:30 से 11 बजे से कॉल आने शुरू हो गई, क्योंकि लंच का पिज़्ज़ा लोग ऑर्डर करते थे. तो जैसे ही ऑर्डर आया, वहाँ पे जो रुका है, पहले ऑर्डर गया, एक बंदे को दिया. तो मैं लेता था, मैंने लिया, और मैं लेके, सर हैव यू वेंट टू नंदोज पर्थ एम्बॉय? हाँ, या नंदोज में खाया मैंने. पर्थ एम्बॉय, द होल एडिसन एरिया, पर्थ एम्बॉय, एडिसन, और क्या था वो, एनजे टर्नपाइक का जो भी एग्जिट ले लो, 7, 8, 9, 10, न्यू ब्रंसविक. आई वॉज देयर, आई वॉज एक्चुअली लिविंग देयर. मैं कभी वो घर पे भी ले जाऊँगा तुमको. मेंटर ने मेरे को ये भी बोला कि यू लीव योर बिगर अपार्टमेंट, स्टार्ट कटिंग डाउन एक्सपेंसेस एंड गो लिव इन अ स्मॉलर प्लेस. तो मैं एक बेसमेंट का मैंने रेंट किया, अकेला ही था, मैरिज नहीं हुई थी, पैसा बहुत था, एंड लिटरली आई डिडंट हैव एनी एक्सपेंसेस, नो डेट. तो अच्छा, कट टू दैट पिज़्ज़ा वाला स्टोरी. तो पिज़्ज़ा वाले के पास मैं आता था, तो हमारी फिर वहाँ पे बेस्ट चिकन एवर. बट आई एम अ वेजिटेरियन मेरे भाई, मेरे को नहीं मालूम कि मैंने नहीं खाया होगा. पर्थ एम्बॉय में तो बहुत बार गया हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं अभी पर्थ एम्बॉय, अभी भी. वहाँ पे बड़ी बड़ी मॉल्स होती थी, ये वो, आई डोंट नो, एडिसन की तरफ भी काफ़ी मॉल्स थी. तो बाय द वे अर्पित, हो कहाँ तुम अभी, अगर सुन रहे हो तो? देन आई
तो कंपटीशन चलती थी, तो मैंने लिया पिज़्ज़ा और मैंने ड्रॉप किया उसको, तो मेरी होड़ लगती थी कि मेरे को जल्दी ड्रॉप करके तुरंत आना है ताकि आई गेट द नेक्स्ट डिलीवरी ऑल्सो मेरे को मिले, क्योंकि फिर मेरे को जाके मेरे को फिर वो टिप मिलेगा. सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट एक्चुअली, राइट. तो और बाकी वाले ना सुस्त, वो चलाने में भी सुस्त थे और आराम से जाते थे उनको. लेकिन मे बी great to hear, boss. Most of us think to do something different, but it takes a lot to actually walk the path. Thank you, Sachin. सभी कर सकते हैं, अपने सब में है वो. I used to play in MCC Cricket Academy and went this best time, best people. हाँ, मानता हूँ मैं, अर्पित. So coming back to the story, तो एक जद्दोजहद होती थी ना. We want to go and prove ourselves, and we want to best wherever. तो हमको फिर मेरे को एट द एंड ऑफ 2-3 आवर्स फिर वो जो पिज़्ज़ा का ओनर था, छोटा पिज़्ज़ा शॉप था, ऐसा बड़ा भी नहीं था, इटालियन, प्रॉपर ऑथेंटिक इटालियन. तो वहाँ पे वो फिर वो वेज पिज़्ज़ा 2 स्लाइस देता था. उसमें भाई अभी पानी आ रहा है मेरे को मुँह में. आई मीन पुणे. अच्छा, मिलते हैं पुणे में. अर्पित मैं आ रहा हूँ मे बी 1-2 हफ्ते में. बताता हूँ, मैं ट्रेन का बुक कर रहा हूँ, पूरी फैमिली आ रही है हमारी फ्रॉम धर्मशाला टू पुणे इन अ ट्रेन. सो देन वो पिज़्ज़ा डिलीवर करता था मैं, और मैंने इतने दोस्त बनाए वहाँ पे. उसमें वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पहले मेरे से कम्पीट करते थे, क्योंकि आप जाओ डिलीवर करके मैं फटाक करके आ जाता. मेरी गाड़ी भी अच्छी थी, मेरी प्रॉब्ली इट वॉज द कार, नॉट मी द ड्राइवर. द कार वॉज गुड, सो द व्हीकल ऑल्सो मैटर्स, राइट, इन एवरीथिंग दैट यू डू. Maybe you are good, but the vehicle you have chosen may not be good. So you need to kind of be looking at your vehicle of doing things as well. तो ये सब यादें हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी. और चंचल जी का जगराता ग्रुप जो दिल्ली से आया था, उनको पूरा ट्राई स्टेट एरिया घुमाया मैंने ड्राइवर बन के 2009 में. वो भी ऐसे टाइम पे जब मैं 3-4 साल विदाउट एनी इनकम के रह सकता था, बिकॉज आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. आई हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई वाज फायर्ड. तो और उसमें कोई हायर भी नहीं कर रहा था. फिर वहाँ पे क्या बोलता, मैं घर वाले को मैंने बताया भी नहीं था कि वहाँ की भाई मेरी जॉब चली गई है. लेकिन पैसे थे बैंक में, पैसे हर महीने मैं मम्मी पापा को भेजता था कि उनको नहीं लग रहा है कि ये जॉब इसकी छूट गई है वो. लेकिन हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी ने पूछा मेरे को फेसबुक पे, अभिषेक ने, कि सर इकोनॉमी का क्या सोचते हैं, तो उसने वो ट्रिगर किया वो क्वेश्चन. तो मैंने बताया कि भाई पर्सनल इकोनॉमी को देखो पहले, फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वट एवर इकोनॉमी हैपन्स. Of course, you're part of the world economy, but what I'm trying to say is be a good custodian of money. Have your finances intact. Calculate बैठ के, पहले तो मम्मी पापा के ऊपर निर्भर ना रहो, किसी के ऊपर भी नहीं. Similarly, don't be also dependent on only one job. हाँ, जॉब होनी चाहिए, but आपकी सेविंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी हो कि you can sustain without the money. Keep your habits low, down. And whatever your ambitions are, your habits and your work ethic should match your ambitions, right? सपने तो सबके हैं, करने को तैयार है क्या तू काम? ये ज़रूरी है. तो भाई अभी 9:41 हो रहे हैं. मैं आई थिंक मैं भावनाओं में बह गया अभी. Somebody asked me about the economy, so I think I'll stop here. Maybe take a couple of questions if you have any. और खाना भी मेरा आया हुआ है यहाँ पे. तो anybody has any questions, wants to ask anything, now is the time to ask. और कोई आना चाह रहा है, if you want to come online, please come. या तो come for dinner, धर्मशाला आ जाओ. 1 मिनट. भाई this is crazy. कोई डिनर खाते हुए लाइव सेशन कर रहा होगा और अभी Q&A दे रहा है. ग्रेट टू लिसन ऑल दिस सर. उमेश थैंक यू यार. मैंने बोला यार अपनी स्टोरी बताते हैं हम, किसी को कोई वैल्यू ऐड हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो सही है. मैं अपने लिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं मेरी यादें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. मैं भी कल शनाया, the kids will grow up and see this. I don't know whether Facebook will still or Insta will still be around by that time. तो इसका डंप लेके मैं बाद में फेसबुक और यूट्यूब इधर उधर भी डालूंगा. तो ये है, वही सीख है ना सर, स्टोरीज हैं. सही है भाई. तो आ जाओ यार, कोई ऑनलाइन आना चाह रहा है मेरे साथ अभी?
टेल समथिंग अबाउट भुट्टे को भात. ये अनूप राय फोटोग्राफी मेरा भाई है, रियल ब्रदर. I recruited him in Pulse Play Digital in advance when he was born. और उसने अभी ये फ्राइड राइस बनाया है, मैं दिखाता हूँ. अच्छा कोई आ रहा है लगता है, मुकेश उमेश आ रहा है. आजा भाई, आजा मैदान में, मर्द को दर्द नहीं होता. बात है. हेलो सर. हेलो, कौन है ये? उमेश सर. उमेश सर. हाय उमेश, क्या हाल है? आओ खाने को. सब बढ़िया सर. ये देखो. अच्छा तुमको दिख नहीं दे रहा है, ये मैं उठाता हूँ यहाँ पे. ये फ्राइड राइस बनाया मेरे भाई ने, अनूप राय फोटोग्राफी ने. जी जी. भाई ऐसा फ्राइड राइस किसी खाया नहीं होगा. बोलो सर. यही था सर, भोपाल से सर. अभी पुणे से एमबीए किया था, 1921 बैच. आपके साथ काफी इंटरेक्शन हुआ था. वो 2 months का जो इंडक्शन होता है उस टाइम पे. वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मच टू लर्न फ्रॉम यू. इफ यू रिमेम्बर, आई वाज द गाय हु वाज टेलिंग ना, वांट टू हैव अ न्यूयॉर्क, in New York, want to have a penthouse and all that. We had a talk. You were saying like, if you want to dream something, you should actually imagine it, when you want to do it, how you want to do it, and all that. So Absolutely. that was it. So you kind of inspired me at that point of time. Like, to be very honest, what I want to be or what I have to achieve. So you were the person who I want to be, and to be in a place like where you are right now. So that was the whole point. अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं, अभी तो शुरू है भाई, कहानी अभी शुरू है. अपना टाइम जी जी. अभी हाँ भाई, अभी जॉब लगी है, 6 months हुए हैं, TCS में जॉब चल रही है. Let's see where it goes. Thank you so much sir. अरे बढ़िया होगा, बिंदास काम करो. लेकिन काम के साथ मैंने अगर आपने मेरा क्लास अटेंड किया है उमेश, आपकी पूरी बैच को मैंने आई थिंक मेरी स्टोरी भी बताई थी. यू नो सिंपल थिंग है राइट. बाला सर ने मेरे को बोला था कि बाला सर कैन बिल्ड Sri Balaji Society at 49 years. I think he was 49 when he started Sri Balaji Society. After having worked for 28 plus years or in army. तो हम लोग तो अभी बच्चे हैं, हम लोग तो शुरू भी नहीं हुए अभी, समझ रहे हो मेरे भाई. और तुमको इतना स्टार्ट मिला हुआ है, मतलब तुमने उनका भी, बाला सर को देखा है, तुमने उनकी लेगेसी को देखा है, उनका एम्पायर देखा, उन्होंने क्या किया, क्या इम्पैक्ट किया. और अब हमारी बारी है राइट. और मेरा भाई सिंपल ड्रीम है, अपने को 5 यूनिकॉर्न धर्मशाला में बनाने का है. डन डील, ठीक है. पल्स प्ले डिजिटल 5 यूनिकॉर्न. अभी 18 लोग देख रहे हैं इंस्टा लाइव में. अभी जोश आ रहा है, लोगों को बोले कौन है दीपक राय आए. सागर रेनेज बोल रहे हैं, व्हाट्स योर एनर्जी दैट कीप्स यू गोइंग. मेरा एनर्जी सिंपल है भाई. मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ बुक सदगुरु का, कर्मा. तो सदगुरु से मैं सीखता हूँ वर्चुअली, मैं उनके आश्रम भी गया हूँ. एंड देन इफ यू टेक कंट्रोल ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग विद इन यू कैन नॉट कंट्रोल द वर्ल्ड. सदगुरु ये सिखा रहे हैं, आप कंट्रोल वर्ल्ड को नहीं कर सकते हो. आप अंदर के सब आपकी खामियां, सब क्वालिटीज, सभी आपके हैबिट्स, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल. वी हैव इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कंट्रोल. अच्छा बाय द वे उमेश, अंकित हाई बोल रहा है तेरे को. या हाय अंकित. थैंक यू. अंकित आजा ऑनलाइन इंस्टा पे. 20 लोग आ गए हैं ऑनलाइन भाई, 21 लोग. अब मजेदार बात होगी उमेश. या सर, सम ऑफ लाइक सर डेफिनेटली वांट टू अचीव मोर. अभी तो ऐसा चल रहा है कि स्लोली ग्रोथ हो रही है. लेट्स सी. अभी मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, लाइक इफ यू आर अभी एक फेज में हो, तो अभी तुम जल्दी सीख सकते हो न्यू चीजें. एक पॉइंट के बाद तुम्हारी लर्निंग की कैपेसिटी थोड़ी कम होती जाती है. ऑब्वियसली होती है, आप सीखते रहते हो प्रैक्टिकली, बट जो थ्योरेटिकल लर्निंग और इन सब में थोड़ी वो स्लो होती जाती है. तो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम अबाउट टू डू दिस कोर्स ऑफ 6 Sigma, लीन मैनेजमेंट 6 Sigma का कोर्स आई एम अबाउट टू डू. तो वही है कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली लेट्स सी हाउ इट गोज. ऐसे फाइनल प्लान क्या है या फाइनल वो क्या है, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इतनी. लेट्स सी लाइक वेयर
और ठीक है तुम काफी यंग भी हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अभी टाइम है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स का, रिस्क लेने का, ट्राइंग एवरीथिंग अंडर द सन ऑफ द अर्थ, व्हाटएवर यू कैन ग्रैब योर हैंड्स ऑन, राइट? अपॉर्चुनिटीज, डूइंग एक्स्ट्रा इंटर्नशिप, आई डोंट नो फॉर्मली अलाउ करेगा नहीं कंपनी आपका, बट विद इन अ कंपनी आप अगर एक प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजर से मिलो, आपके बॉस के दोस्त से मिलो, आपके बॉस के पीयर से बात करो, आपके बॉस से बात करो, उसके मैनेजर से बात करो, सर मैं किधर किधर एक्सपोजर लूं। एट द सेम टाइम रिमेंबर within the organization, right? So you become this knowledge seeker, right? और जाओ करो it within the corporate house, and you try to become the entrepreneur within the corporate, within your own thing. उसकी limitations होगी जो भी, you don't worry about it, just go and experiment, understand ये क्या हो रहा है, certifications कहाँ पे, Udemy में certificates उठाओ, Coursera में certificates उठाओ, Six Sigma अगर कर रहे हो तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन look at Agile, right? PMI, PMP में Agile की certification, Scrum की देखो क्या है परिभाषाएं, eligibility, project management करना जाना चाहते हो, right? तो ये सब है, करते रहो, डिजिटल की स्किल्स उठाओ। माइका बढ़िया डिजिटल के कोर्सेज दे रहा है, लेकिन थोड़ी महंगी है, MICA अहमदाबाद वाली। वो अपग्रेड के थ्रू भी उसका कोई कोर्स हो रहा था माइका का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का। करेक्ट उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो मैं एक्सप्लोर कर रहा था। आई हैव आल्सो डन इंटर्नशिप अपग्रेड में भी 2 months की, बट वो फिर कोर सेल्स वाली थी। So that was in which I got to know कि माइका डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो दे रहा है। सही है, माइका का है, अच्छा है, डिजाइन थिंकिंग करवा रहा है आपको, डिजिटल का पूरा स्टैक उठा रहा है, दे रहा है, प्लस उसका माइका का एक रेगुलेशन मिल जाएगा आपको। So you need to do your due diligence, understand कौन सी कंपनी लीगल है, कौन सी नहीं है, कौन सी अच्छी है। But I, as a personal experience, जहाँ मेरा experience है, one of the best companies is Amway business. उसके भी कुछ न्यूज आए थे, ये वो जो भी है, but it is one of the legitimate and the leaders in the business. In fact, I actually consulted to one of the network marketing companies in US, जहाँ पे उनका digital transformation मैंने करवाया. So I was not working as a network. So on one hand, I was working at one company. So network marketing का मेरा experience ये है. I was working with a company, as I said, called Amway, and the training institute of that Brit Worldwide. Incredible. Abhi bhi mera, and I'm in touch with the people, my old mentors, etc. I learned about life, about skills, about principles of life, कैसे करना है, क्या करना है, जब मैं बच्चा था, right? And these are multi-millionaires. एंड उनसे बहुत सीखा मैंने लाइफ के बारे में, अभी भी सीखता हूँ, राइट? देन आई वर्कड एक्चुअली एज अ कंसल्टेंट टू अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन US कॉल्ड NuSkin, NuSkin. आई डोंट थिंक इट्स इन इंडिया, NuSkin. उस समय वो कंपनी $2 billion की थी, मतलब रेवेन्यू, और उनका पूरा वेब कैंपेन्स, डिजिटल, IT, कॉल सेंटर, उसकी पूरी कंसल्टिंग मैंने की थी। I was one of the people in the consulting team. So I know the company from inside. I knew the company from inside who was my client, a network marketing company. Then on the other side, I was doing network marketing business while I was doing my job, because you don't have to leave your job while you do it. So it is it's a win-win. But be careful, as somebody is saying, some of the network companies are banned, some of our pyramid, whatever. See, this one you need to do your due diligence. You understand, meeting people, उनसे पूछना है questions आपको, and then you will get to know, right? स्कोप बढ़ जाता है एक तरीके से, मतलब आपका डायमेंशन, ग्रोथ अलग है, और आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, जॉब चलती रहे आपकी। हाँ, भोपाल पे हो अभी? जी क्या है भोपाल में, क्या कर रहे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। वो बताया ना, अभी TCS में वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो वैसे ही काम चल रहा है।
देखें उसके आगे। बाकी ये है कि लास्ट ईयर वाज, people were saying कि pandemic हो गया ये वो, it was quite good year for me to be very honest. Traveled a lot, like visited different cities, and also in a growth perspective done internships in like five different companies, got placed also, so it was a very good year to be very honest. बढ़िया। तुम्हारे बैचमेट्स को लाओ कभी, we'll do like a join this thing online session. आए होंगे एक से, आने तो चाहिए था वैसे। कोई नहीं, लेकिन मेरे को बात बताओ एक जी। यू आर यंग उमेश, अभी तुम इतने तो उम्र क्या है तुम्हारी? 23 तुम्हारे सपने क्या है? To be bluntly put out there, अमीर बनना है, to be very rich, yeah. कितना अमीर? अमीर मतलब कौन है आज की तारीख में? पैसे कितने, बैंक में पैसे कितने होने चाहिए तुम्हारे? 200 करोड़ तो होने चाहिए। मतलब ये तो वो हो गया कि वैसा नंबर हो गया जो मुझे चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए तो मिनिमम 10 to 15 या 20 करोड़ तो होनी चाहिए एटलीस्ट बैंक में। बट ये है कि हाँ, उसमें फिर ये भी मैच्योरिटी है ना कि पता है कि कितने टाइम में आना चाहिए। जैसे 15-20 साल तो मिनिमम लगने चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट आए, वो ग्रोथ आए, तभी वो चीज मिल पाएगी। वो भी मैच्योरिटी रख रहे हैं साथ में। बट ये है कि जैसे मैंने भी बताया कि आपसे काफी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि आपने भी कॉलेज में आके ब्लैंकली बोला था कि मैं अपनी इनकम नहीं बताऊंगा, लेकिन जितनी तुम इमेजिन कर सकते हो उतनी मेरी है। which was मैंने फिर वो चीज काफी लोगों से शेयर भी की कि हमारे कॉलेज के एक सीनियर हैं, सर हैं, उनकी इनकम इतनी है एंड दे आर लाइक डूइंग देयर ओन थिंग। अभी उन्होंने पल्स प्ले डिजिटल करके अपनी खुद की कंपनी ओपन की है। मैं अपने घर वालों को भी बता रहा था, तो दे वर आल्सो लाइक कि हाँ तो फिर करो उनके जैसा कुछ अच्छा लाइफ में। आई एम लाइक हाँ, होपिंग फॉर बेस्ट डेफिनेटली। उमेश मेरे भाई, एक रीजन मेरा ये ऑनलाइन आने का ये है कि अगर मैं आपको और आपके जैसे अगर एक बंदे को भी मैंने अगर हेल्प की किसी भी तरह से, तो ये सब करने का मेरा सार्थक होगा गोल। हम लोग तो बिल्ड कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, राइट, कि हमारी कंपनी क्या है, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको हेल्प कर पाया किसी भी तरह से, सो आई विल बी कि मेरे सर पे कर्जा है। किसका कर्जा है मालूम है? मेरे मेंटर्स का, जिसने मेरे को सिखाया। एंड द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट पे देम बैक। उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, वो प्रॉपर मल्टी मिलियनर बन के बैठे हैं, ठीक है। वो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता दीपक राय क्या कर सकता है मेरे लिए, द ओनली वे आई कैन पे देम बैक इज बाय हेल्पिंग यू and people like you, young people। तो जो मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं लाइव कर रहा हूँ खाना खाते खाते। ये जिम्मेदारी मैंने ली है बिकॉज देखो कोविड ने बहुत सिखाया ना, अपने को दिखाया बहुत। क्या है, कल को कोई भी गुल हो सकता है, क्या मालूम है किसको यार, है कि नहीं जी। तो काई के लिए शोश आगे बिजनेस में नहीं रहने का, बिंदा से जो दिल में बोलने का। और हम तो पूरा इंटरनल मीटिंग हम लोग लाइव कर रहे हैं, मेरे इंस्टा में हैंडल में जाके देख लो, ठीक है। कुछ नहीं छुपाने का अपने को। अपने वजह से अगर अपने आइडिया की वजह से कोई अगर किसी को बेनिफिट हो गया, जा भैया कर, तू बढ़िया है, मेरे को और मजा आएगा। यू अंडरस्टैंड? लोग हमारा हाथ होगा उस पे, हाँ, मतलब कि हमारा एक इनपुट। कोई मेरे को बोल रहा था, मेरे को अपना टीम मेरे को बोला, सर आप इंटरनल मीटिंग लाइव कर रहे हो, कंपटीशन देखेगा। मैं बोला जीतने दे उसको यार, मेरे को अपने को इकोसिस्टम बनाने का इतना लाइफ में इतना अबंडेंस है, वी हैव अबंडेंस मेंटालिटी, कुछ कमी नहीं है। लोग इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, बोले छोड़ अपना पर्सनल इकोनॉमी देख, देयर इज लॉट ऑफ अबंडेंस। डोंट बी अ बुद्धिजीवी कि ये इकोनॉमी इतना परसेंटेज, ये मेटल ऊपर गया, ये गया, वो गया, कमोडिटी ऐसा हुआ। फॉरगेट अबाउट दैट। अपना क्या है, अपना पहले सक्षम बनो,
फिर दुनिया के बारे में बात करेंगे अपन। सिंपल है ना भाई। आखिर में मेरा इकोनॉमी मेरे बैंक में साला 5,000 पड़ा है और मैं बोल रहा है सर अपना इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन जा रहा है। वो जाएगा, उसमें 5 ट्रिलियन में तेरा कितना है भाई? और तू वो करने के 5 ट्रिलियन में और तेरा शेयर ऊपर जाने के लिए तू क्या कर रहा है? वर्ल्ड की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन रहेगी, 100 ट्रिलियन रहेगी, जो भी रहेगी। हाउ इज माई पर्सनल इकोनॉमी कनेक्टेड टू दैट? सागर ने ये पूछा है, सोच जरा इसके बारे में। सही है ना? ट्रू जी जी। जो भी है थियोरेटिकल बात ठीक है करते रहे, वो भी जरूरी है। यू शुड कीप, ऐसा नहीं बोल रहा कि आंखें बंद करके सो जाओ और पता ही नहीं चल रहा लाइफ में क्या होगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सी द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। बट अभी भी जैसे कई सारे लोगों को क्या क्लैरिटी वो क्या मिलती स्टार्टिंग में, लाइक मी फॉर एन एग्जांपल, आई स्टिल डोंट हैव अ क्लैरिटी लाइक in a long run what I want to do. Are you understanding? Like in a long run, now what I'm doing now is okay. What I want to do in this year, that is fine. Like in long run, where I see myself and what I want to do, that is totally different thing, and that is where we lack. देख, मैं बताऊं 4-5 स्टेप बताता हूँ। नंबर 1, understand where you are financially today. Okay. तेरा खुद का अगर तू बिजनेस रहता, तेरा P&L क्या है? How much money do you owe people or institutions? और मैं तो चैलेंज दूं क्या एक, उमेश? हाँ जी बिल्कुल। तुम्हारा फीस कितना था कॉलेज का, MBA का? 8 to 9 लाख। तो पैसे किसने दिए? एजुकेशन लोन लिया, ठीक है। लोन को चुकता कर रहा है ना अभी तू? हाँ। उसके पहले 20-21 साल आपको आपकी मम्मी पापा ने बड़ा किया जी। अभी नाउ वीकेंड तो खत्म हो गया, लेकिन जब भी तेरे को टाइम मिलेगा, सिट डाउन विद एन एक्सेल शीट, हर साल का खर्चा निकाल, एक्सेल में डाल। आने वाले मतलब कि हो 1 साल जब से तुम पैदा हुए और 21 साल तक जब पहुंचे, या जब भी तक, हाउ मच मनी आवर पेरेंट्स मस्ट हैव इन्वेस्टेड इन अस? नंबर 1, बिकॉज टाइम तो बोलेगा हाँ 21 साल, दिल पे कभी वो यू नीड टू हैव दैट नंबर, ठीक है? और 21 साल तक हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या किया? चलो हम उनके प्यार का तो हम तोल भाव नहीं लगा सकते, उनका कुछ भी नहीं हम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू हैव अ गोल, यू कैलकुलेट, गो बैक। फर्स्ट ईयर में उन्होंने क्या क्या स्पेंड किया होगा? हॉस्पिटल, कभी बीमार हो गए होंगे, खाना पीना, दूध, कपड़े, फिर एजुकेशन, राइट? 21 साल तक तुमको पढ़ाया, मेरे को भी पढ़ाया, हाँ? कहीं पे लोन लिया होगा, कभी कुछ किया होगा, पता नहीं अपने को क्या तकलीफ से गुजरे हैं, सही है? देन यू फाइंड आउट दैट अमाउंट की वो अमाउंट कितना है। लेट अस से वो अमाउंट है 15 लाख, 10 लाख, कितना भी, आई डोंट नो कितना, कहाँ रहे हो तुम, एक निकालो एक एस्टिमेट, ठीक है? देन तुम्हारी मम्मी पापा को जाके बोलो कि पापा मम्मी, मैं एक दिन बैठा था, मेरे एक सर है, वो ऐसा बात कर रहे थे ऑनलाइन, बोला उन्होंने हिसाब निकालो, और मैंने ये हिसाब निकाल के मैं आया हूँ। ये हिसाब करेक्ट लगता है क्या आपको क्या लगता है? और मैं मम्मी पापा को बोलो, मम्मी मैं ये नहीं कर रहा कि मैं आपका मूल्य निकाल रहा हूँ कि आपने फाइनेंशियली कितना, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या तकलीफें हैं, और आपने मेरे को आज तक मेरे पैर पे खड़ा कर दिया, तो मेरे में क्या हुआ होगा वो करने में, ठीक है? वो पैसा का आप एक गोल रखो, दैट विल बिकम योर गोल नंबर 1, फाइनेंशियल गोल। वो पैसे आपको लेके फिर उसको 20 साल 21 साल का इंटरेस्ट लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन वापस जाके बोलो ये इंटरेस्ट रेट पे अब ये इसका अमाउंट फला बनता है, जितना भी बना, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख,
देन तुम्हारा एजुकेशन लोन चल रहा है 8, 9, 10 लाख जितना भी है, ठीक है, तो तुम्हारा 45-50 लाख का तुम्हारा टारगेट है फॉर एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, अब तुमको वो 50-45 लाख तुम्हारे करंट जॉब में वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पहले तो वो फाइंड आउट करो। 50, 30, 35, 50, 40 जितना भी तुम्हारा गोल है, 10 लाख भी हो सकता है, 5 लाख, आई डोंट नो, वो तुम्हारे गोल में कब बन सकता है। तुम्हारे में अगर इतना डेयरिंग है, तुम बॉस के सामने बैठो, उसको बोलो सर एक क्वेश्चन है, वो बोलेगा तुमको क्या क्वेश्चन है भाई बता, बोला सर मेरे को 45 लाख रुपए का पैकेज चाहिए, कब तक होगा मेरे को बताओ, और मैं वो पैकेज में कैसा पहुंचूंगा। ठीक है। मैं बोला तुम यंग है, बिंदास रहने का, डरने का नहीं, डिसरिस्पेक्टफुली मत बोलो, विद रिस्पेक्ट। नहीं जी सर आई वांट मेंटरशिप। अगर वो पहले तो उसका पैकेज अगर 45 है, देन ही इज द राइट मेंटर टू आंसर योर क्वेश्चन, नंबर 1। इफ ही हिमसेल्फ उसका भी खुद का ही कुछ अलग है पैकेज, ही डजंट क्वालिफाई टू बी अ मेंटर। ओके। फिर नाउ तुम्हारा करंट स्थिति पे आ जाओ, तुम्हारा करंट एक्सपेंसेस क्या है महीने का, खाना पीना रहना रेंट। अगर तुम मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, सेम अगर रूम अगर कहीं बाहर लेते रेंट में, तो कितना देना पड़ता तुमको, उसका कैलकुलेट वो भी ठीक है, सबका प्राइस है, वो प्राइस निकालो, ठीक है। तो मैंने जब कहा कि यू अंडरस्टैंड योर इकोनॉमी फर्स्ट, इसका मतलब ये है पहले तो तुमको एज अ बिजनेस या एज अ स्टार्टअप, लेट्स से इफ यू आर अ स्टार्टअप दैट योर पेरेंट्स इन्वेस्टेड इन, ओके तुम ठीक है 23 साल के स्टार्टअप हो गए, हाँ अभी तो रिटर्न आने का टाइम है भाई इन्वेस्टर्स का, लेने का टाइम, हाँ ट्रू। सो वो स्टार्टअप तुम एज अ स्टार्टअप, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड स्टार्टअप, 42 यूनिकॉर्न चले गए इंडिया में, उमेश एज अ स्टार्टअप ऑफ योर पेरेंट्स। नाउ रिमेंबर your founders, which is your parents, it's very late for them to start another startup. समझ रहे हो? हाँ मतलब तुम पे दाव खेला है पूरा उन्होंने। जी। You are the startup, you are it. अब प्रेशर नहीं लेने का, लेकिन ऐसा मजे लेने का, उसका फाइनेंशियल एक गोल आएगा ना सामने। जी। अब बताओ कि तुमको या तो तुम्हारा जॉब या कोई बिजनेस या पैसिव इनकम या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो लीगल मॉरल एथिकल हो, राइट, एनी टाइप ऑफ इनकम सोर्स, ऐसा क्या है, तुम क्या करोगे, एंड तुम्हारा माइंड विल सेट इनटू अ मोशन नाउ, इट विल स्टार्ट थिंकिंग। जब तुम नंबर डालते हो ना, अपने हाथों से लिखोगे, देयर इज मैजिक, जब उसको बोलोगे देयर इज इवन, इट बिकम्स इवन मोर मैजिकल, देन तुम यूनिवर्स को शेयर करेगा। वो था ना अपना शाहरुख का डायलॉग, क्या था, पूरी कायनात मिलके तुम्हारी मदद, वो था कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहने की वो क्या था, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। I wanted, desired, dreamed of you with so much of intensity that every fiber in this universe has conspired to make it a reality. Right? ओम शांति ओम का सही है, सॉलिटरी लर्नर सही भाई, सही पहुंचे तुम, तेरा टाइम भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा, नॉट योर पिज्जा। अरे मैं पिज्जा शॉप में काम करता था, न्यू जर्सी में, स्टोरी पता था, अभी पता नहीं किसने सोचा, ये रिवाइंड करके देखो। बट सर अपने कॉलेज के ही हैं दोनों अपनी है। नॉट योर पिज्जा कौन है भाई? MM की हैं, नाम क्या है? प्रियंका आई गेस, मेरे को ऐसे नाम। तो ये करो, अपना PNL निकालो, कंपनी का प्रोजेक्ट का छोड़ो, वो तो चलता रहेगा, अपनी जिंदगी का PNL निकालो अभी।
मैं ये नहीं बोला कमर्शियल वगैरह, भाई मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या है ना, अभी स्पिरिचुअल, अभी तुम्हारा टाइम आएगा स्पिरिचुअल बनने का। पहले थोड़ा माँ बाप के कर्जे उतारने पहले, क्या कहते हो? जी जी बिल्कुल, है ना, मम्मी पापा का जो कर्जा है, स्टार्टअप फाउंडर ने 23 साल रुका है, क्या इन्वेस्टमेंट है भाई उमेश, बताओ कब दोगे? वो भी तय करो। एक मम्मी को एक प्यारी सी गोल्ड की हार, एक तो नेकलेस बनता है, हैं? जी बिल्कुल मेरे भाई सब ठीक है। अगर पता नहीं तुम्हारे, अभी तुम आ गए हो तो गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं ठीक है, नहीं फर्स्ट गर्लफ्रेंड तो अपनी माँ ही है। जी बिल्कुल। तो अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड के लिए अभी पता नहीं सोने का भाव क्या चल रहा है, ठीक है, जाके एक पहले तय करो, एक गोल निकालो कि भाई सॉलिटरी लर्नर बोल रहा है झूठ, कौन है भाई, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम बता दे। आजा तू भी आजा लाइन पे, ऑनलाइन आजा। सॉलिटरी अर्जुन सर, अर्जुन कालिया if you want to come live। अभी अर्जुन नहीं है, अर्जुन कहाँ हो? मेरा हिमाचली। हाँ सर वही। anyway, अर्जुन और ये डिजिटल टीम के साथ बहुत मैंने बातें की है, अर्जुन जानता है मेरे को। जी जी। अर्जुन यार धर्मशाला देख रहा है क्या तू? जो भी मैंने थियोरेटिकल बात की थी तेरे से 1.5 साल तेरे से और तेरी पूरी टीम से, वो हम रियलिटी कर रहे हैं क्या नहीं? कैसे फेंका था मैंने, बता दे भाई। आ रहा है शायद, आ गया अर्जुन, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आजा भाई। अर्जुन बताएगा तुमको। वो मेरा कुछ ना बता देना। हेलो सर। अर्जुन क्या हाल है? अर्जुन बढ़िया सर, ऑल गुड। क्या भाई पीछे एकदम कड़क बैकग्राउंड वगैरह? अरे नहीं सर, बस ऐसे कभी कभार बुक्स रीड करते रहते हैं। अरे बहुत अच्छा लगा है यार। कौन सी बुक रीड कर रहा है अभी? सर आजकल अभी तो मैं कोई और ही रीड कर रहा हूँ सर। मैंने एक ना मोटी सी बुक ले ली, अ लिटिल लाइफ, थोड़ी सी डिप्रेसिंग सी है बट ठीक है, कोई वांदा नहीं। अलग अलग जॉनर्स ट्राई कर रहा हूँ। सही। अच्छा मेरे को बहुत खुशी हुई, एक तो अर्जुन आया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों। अर्जुन ये लोग को मालूम नहीं रहेगा, राइट? अर्जुन तेरे को मालूम है, जब दुबई से मैं तुम्हारे पूरे टीम से और डिजिटल जो टीम था अपना SBU का स्टूडेंट्स लोग का, यस सर, हम लोग, मैं तुम्हारे सामने मैंने क्या क्या मैंने कस्में वादे बताए थे या इरादे बताए थे, जो भी अपनी धर्मशाला के सपनों को लेके। हाँ पूरा का पूरा प्लान था। अभी तू पता नहीं कितना अपडेट देख रहा है मेरा, तू मेरे को सच बता, मैंने सब फेंका था कि मैं कर भी रहा हूँ? सर हाँ, स्टार्टअप का था एंड एवरीथिंग, पर सर स्टार्टअप थोड़ा सा आपने डिफरेंट किया, बिकॉज वो था ऑर्गेनिक का, आपने कुछ Correct. वो करना था, है ना? Correct. जितना मेरे को याद है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, बिकॉज वो हिमाचल में थोड़ा सूट भी करता था अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ऑल। सो आई गेस उसका आपने ट्राई भी किया था। यू वेंट टू पुणे, लाइक आई गेस उसी चीज के पीछे थोड़ा सा मेरे को अपडेट था। सो बस थोड़े से मेरे को मैं बताऊं तेरे को अपडेट, राइट? पहले तो उमेश तू बोर तो नहीं हो रहा ना? ये था हम लोग फ्लैशबैक में चले गए। कोई नहीं सर, सब नॉलेजेबल चीज है। हाँ तो बेसिकली यार मैं बताता हूँ तेरे को, पीपल हियर ऑन इंस्टाग्राम में हमारे हैंडल पे लाइव है, जो पीपल आर लॉग्ड इन ऑन फेसबुक, इफ यू आल्सो वांट टू कम यू आर वेलकम टू जॉइन। सो दीपक राय नाइन, अच्छा अर्जुन कालिया और कपल ऑफ द डिजिटल टीम, जो स्टूडेंट्स की टीम थी SBUP की, कॉलेज की हमारी, मेरा और श्रुति का पहले गोल था, ड्रीम था कि हम लोग रिजॉर्ट बनाएंगे धर्मशाला में, ठीक है, नंबर 1। नहीं बस हो गया, थैंक यू। मेरी वाइफ आई श्रुति का नाम लेके, हजारों साल जिएगी और हजारों साल जिएगी तो जिएगी, और सौभाग्यवती भव विद मी एज अ पति। खुद को भी आशीर्वाद देना बनता है, ठीक है। तो उस समय मेरा I was planning to start a resort, लेकिन रिजॉर्ट फिर वो कोरोना वरना हुआ, तो फिर हमने बोला भाई it will not be a very wise thing to do। लैंड तो अपनी है ही है,
ठीक है। उसी लैंड पे फिर हम लोग ने एग्रीकल्चर चालू किया, एक सीजन हमने खाया भी, मतलब उसमें क्रॉप भी निकाला, ठीक है। देन श्रुति मेरे को बोली यार ये सब ठीक है, नो एग्रीकल्चर हम करेंगे, कर भी सकते हैं आगे भी, लेकिन कमर्शियली उसका क्या है, व्हाट इज द एंड दिस थिंग, राइट। कोई अपना बात आ गई ना, पर्सनल इकोनॉमी क्या है उसमें से, सिंपल, ठीक है। या तो सेविंग्स पे पूरा निकालना है जिंदगी, वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोला भाई नहीं करते। तो मैंने बोला यार जिंदगी भर हमने डिजिटल किया है, कोरोना है, डिजिटल अभी फोरफ्रंट पे आ रहा है, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट डिजिटल। और मैं कहता हूँ, मैं सिंपल बोलता हूँ, आई हैड नॉट थॉट दैट मैं दुबई छोड़ रहा हूँ डिजिटल कंपनी शुरू करने के लिए। अर्जुन को मालूम है, अर्जुन बताएगा, मैंने बताया था कि हम कुछ एग्रीकल्चर करेंगे, कुछ रिजॉर्ट का करेंगे, प्लान भी पूरा बन चुका था, एक्सकवेशन करवाई, लाइट आई, 2 बोरिंग करवाई, पत्थरे तुड़वाए, सुरंग लगाया, पूरे मतलब प्रॉपर। मैं दिखाऊंगा कभी लाइव फीड चला जाऊंगा उधर ही जमीन पे, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देन यहाँ पे आने के बाद बड़ा यार कुछ पूरे कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल में 17 होटल्स रिजॉर्ट बंद हो गई, लाइक लॉकडाउन, लाइक शटडाउन, ताला लग गया, फाइनेंशियली बैंकरप्ट दोज होटल्स। मैंने बोला भाई राइटिंग इज इन द वॉल, अभी ये खुलेगा भी, ठीक है, हमारा होटल बनने में, रिजॉर्ट बनने में 2 साल लगेंगे। तो लोग बोलने लगे भाई 2 साल के बाद तो फिर खुल जाएगा। मैंने बोला सही है, लेकिन ब्रेक इवन करने को अपने को 8 साल लगेंगे। उस 8 साल में अगर फिर से एक बार कुछ कौन आ गया, ओमिक्रॉन, कोरोना या कुछ भी, तो भाई तुम घुस रहे हो उसमें, तो एंड स्पेशली अ फील्ड दैट आई हैव नेवर रन अ रिजॉर्ट, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो उसमें लर्निंग कर्व रहेगी, 25-30 लोग तुमको पीएनएल करना है, मतलब सैलरी और वो सब स्टाफ लगाना है। तो हमने बोला भाई जिंदगी भर मैंने डिजिटल पे बिजनेस बिल्ड किया है और दूसरे ब्रांड्स के लिए काम किया है, मेरा लास्ट प्रोफाइल भी पूरा डिजिटल में कर रहा था, राइट। यूएस में डिजिटल किया है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, दैट वाज द। तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं। तो 25 ऑफ जैन हमने रजिस्टर की डिजिटल। अब उसके बाद भी वर नॉट इन टच। अर्जुन इसलिए मिला, मैं इसलिए एक्साइटेड हो गया, बोला अर्जुन आया भाई, ठीक है। तो अर्जुन के और पूरे उसके ग्रुप को पता है, वो जो 4, 5, 6, 7 लोग थे, अब एक तो दुबई में बैठा है, बाकी लोग, एक देहरादून में बैठी है अपनी फूड वाली, सिग्नेचर फूड्स। तो कालिया से मेरा ज्यादा ये बना क्योंकि वो हिमाचल का था, तो मेरे को याद है। तो देन अभी आपके सामने भाई प्रस्तुत है पल्स प्ले डिजिटल, जिनके हैं 16 क्लाइंट्स, अभी रिटेनर पे 14 है। हमने तकरीबन 15-20 वेबसाइट्स, D2C, ई-कॉमर्स, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, शिपिंग इंटीग्रेशन सब करवा के, वी आर अ टीम ऑफ 15 लोग, ठीक है। अर्जुन, उमेश और सब जो दोस्त देख रहे हैं ऑनलाइन। हाँ रचित यार तू भी आजा, रचित भी अपने ग्रुप का ही है, ये सर जो बोल रहा है। हाँ सर, ये रचित अपना HR डिजिटल का। यार रचित तू भी आजा, देख इनको सच पूरी अपनी पब्लिक को बोल दे मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अभी डिजिटल का हम लोग अभी 8 लोग और हायर कर रहे हैं। मैं तो खुला देता हूँ इनवाइट, जो भी पेड मीडिया का है, अगर तुमने 50 लाख से 60 लाख मैनेज किया है डिजिटल स्पेंड, आओ मैदान में, हम बिजनेस बढ़ाते हैं, पल्स प्ले में ज्वाइन करो। एंड देन हमारा ये सपना है, पूरा टीम हमारा देख रहा है, पता नहीं पल्स प्ले टीम भी ज्वाइन कर रहा होगा। Our goal is to launch 5 unicorns from Dharamshala, from the Pulse Play kind of not the banner I would say, but Pulse Play team से। मतलब क्या है, जो भी ज्वाइन करेगा पल्स प्ले, मैं सबको बोल रहा हूँ आप आइडिया लाओ। पूरी पल्स प्ले टीम सर्विसेज टीम है, टेक, डिजिटल, गो टू मार्केट, स्पेंड, डिजिटल मीडिया, प्रोग्रामेटिक का, मीडिया का, और हम लोग ब्रांड बनाएंगे। 5 यूनिकॉर्न्स अगर हमको बनाने हैं तो उसके लिए हमको 15 से 18 कंपनियां लॉन्च करनी पड़ेगी, अलग अलग बेट्स। ओके, सिंपल है। यू कैन कम, यू कैन सी मी एक्साइटेड। अभी 10:30 बज रहे हैं, मैंने अभी लाइव में मैंने खाना भी खाया, अभी फ्राइड राइस भी मेरे भाई ने बना के दिया, ठीक है ना, बढ़िया बनाया है। अनुप राय ने, पार्ट ऑफ द टीम है वो, ही इज हैंडलिंग क्रिएटिव प्रोडक्शन। भूपिंदर भी है जो तालियां मार रहे हैं, भूपिंदर इज पार्ट ऑफ पल्स प्ले, ही इज जॉइन 15 days बैक,
ठीक है, तुम कोई भी टीम, अपने टीम से किसी को भी उठा लो, बोले व्हाट इज पल्स प्लेस गोल, यू विल हियर द सेम थिंग्स बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर फुली ट्रांसपेरेंट. अभी देखो ये है, हाउ विल वी क्रिएट दैट 5 यूनिकॉर्न्स? वी विल प्ले बेट्स ऑन रोटी कपड़ा मकान, मतलब those businesses that will always be there. ठीक है, रोटी मतलब खाना पीना, एग्रीटेक, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, उसका ब्रांड बना के क्या फूड प्रोसेसिंग, ये सब एक में आ गई. रोटी इज जस्ट द सिंबल ऑफ खाना, कंजम्पशन, राइट? कपड़ा इज जस्ट ऊपर पहनने के लिए, कंफर्ट करने के लिए लोगों को क्या क्या लगता है, ठीक है. और कपड़ा का मतलब सिर्फ ये नहीं है, दिमाग का कपड़ा भी, एडटेक, अपैरल्स, शूज, टी शर्ट्स, जो भी, साड़ियां, आई डोंट नो क्या ब्रांड बन सकता है, फैशन का क्या ब्रांड आ सकता है, या एग्रीटेक, या अपैरल टेक, राइट? फैशन टेक, लग्जरी आ गई, सब आ गया उसमें. हाँ, या तो अफोर्डेबल क्लोथिंग, जो भी बोल लो आप, कॉटन, सस्टेनेबल. अपनी भी अलुमनाई कुछ कुछ कर रहे हैं अलग अलग, मेरे को पता है. रिचा कर रही है, हाउस ऑफ मोक्षा अपनी अलुमनाई है, ठीक है. तो ये सेकंड. फिर मकान मतलब, see, our understanding of makan is not the hardcore real estate. Our understanding of makan is comfort क्या दे रहा है आपको रहने के लिए, चीज या जो भी, राइट? या कंफर्टेबल आपको क्या कर रहा है, घर क्या देता है, घर के एट्रीब्यूट्स क्या है, वो एट्रीब्यूट्स का क्या मार्केट प्लेस बन सकता है, ठीक है. देन we'll get into वेब 3.0 में सब आ गई आपकी, मेटावर्स, NFT, VFX स्टूडियो बनाएंगे. जो अर्जुन कह रहा है ना कि वहां पे सर आप तो रिजॉर्ट का कुछ कर रहे थे, तो वहां पे जो खेती हो रही थी, वहां पे हम लोग VFX स्टूडियो बनाएंगे, ठीक है. तो अपना पूरा VFX स्टूडियो बनाएंगे, एंड एक पार्ट होगा कमर्शियल, एक पार्ट होगा रेजिडेंशियल, जहां हम लोग रहेंगे भी. वहां पे एक आगे कैंटीन बनाएंगे, तो खाना पीना एक टाइप में ढाबा टाइप का, लेकिन अच्छा खाना. और ठीक है, लोग बोल रहे हैं सर ट्रेनिंग में भी घुसो, वो करेंगे हम लोग. ट्रेनिंग तो हम लोग ही देंगे, और हम लोग ही काम जॉब भी दिलवाएंगे, लेकिन धर्मशाला में. सी, वी डिडंट वांट टू डू इट इन वी डिडंट वांट टू बी वन मोर कंपनी इन पूना में. साला हर गली में जाओ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है बंदा, सोते इज अ डिजिटल मार्केटर. वी आर नॉट दैट कंपनी, राइट? सो वी डू क्रिएटिव प्रोडक्शन सब इन हाउस, ड्रोन शूट्स, TVCs करेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने वाले हैं. प्लानिंग पूरी चल रही है. आर्किटेक्ट साहब इसी हफ्ते आएंगे, मैं उनको लाइव भी लाऊंगा आर्किटेक्ट को, ठीक है. तो वो पूरा प्लान ही दिखाऊंगा मैं. तो दिस इज रियल, दिस इज हैपनिंग. और पूरा पर्सनल मनी हम लोग डाल रहे हैं, कुछ भी हमारा कुछ फंडिंग VC कुछ नहीं है. नाउ मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? नॉट टू बोस्ट, बट टू टेल यू दैट मैं जो एक्सपीरियंस लेके जो मैं बात कर रहा हूँ, और इतना एक्साइटमेंट है, अपने मेहनत के पैसे से हमने कमाया, ठीक है. और मैं एकदम पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ. आई डोंट नो इफ यू नो माई स्टोरी, यू प्रॉब्ली नो, लॉट ऑफ पीपल नो. बाला सर हैज चेंज माई लाइफ, ठीक है. स्कॉलरशिप देके, फर्स्ट बैच का बंदा, और मेरे को स्कॉलरशिप देके मेरे को लिटरली पिक मी अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे. एंड आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स हु, उन्होंने जिद की कि नहीं यार, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ये मेरे बेटे को एंड मेरे सब बच्चों को. तो मैंने अभी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ये सब बकवास है. अर्जुन, तेरे को भी मैं सेम चैलेंज देता जो उमेश को बोला मैंने. तूने सुना ही नहीं, पता नहीं. सुना सर. फिगर आउट. तुम लोग को मैं फिर से मैं डंडे का भी मारूंगा, अभी ऑनलाइन आ गए मेरे साथ ना, वर्चुअल डंडे. भाई पता कर, ठीक है. माँ को एक 9 लाख का हार ला के दे, इतनी तो तेरी हैसियत होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या धिक्कार है तेरे पे और मेरे पे भी, ठीक है. कि सिर्फ आई नो इट डजंट मैटर, उनके लिए कुछ नहीं है, ये तेरे तरफ से तू करना यार, तू जज्बा लेके चल. बाद में तू जो भी अपनी शादी के लिए जो जोड़ रहा होगा, या जो भी बीवी के लिए जोड़ रहा है, वो सब छोड़. पहले माँ को तो कुछ लेके दे. एक सोने का फुल 20 कैरेट, कितना कैरेट चल रहा है मालूम नहीं, 22 कैरेट, 20 कैरेट, जो भी है, जो भी उसका आता है, प्योर में लेके दे. दुबई लेके जा. मैंने करवाया, मम्मी को मैंने दिया. जो भी मैं बोलता हूँ मैंने पहले तो करा हूँ, तो मैं थियरी नहीं बोल रहा हूँ तेरे को, ठीक है. अब मैं तुम्हारी उम्र से भी बड़ा हूँ, तो मैं कर चुका हूँ ये चीज. देख, ये एक हार लाके चल, छोड़ दे बाकी सब, चल कुछ एक छोटा है हार लाके दे, इतना चल. तेरे को चैलेंज देता हूँ, और मेरे को फोटो भेज. मेरे को इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होगी लाइफ में, मैं बोल रहा हूँ तेरे को. या तो पैसे जोड़,
या तो दिमाग लगा स्टॉक में, साले जीरोधा में जा, रजिस्टर कर। तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में बोला था, तुम लोगों को डाउनलोड दैट ऐप, रजिस्टर, बोला था कि नहीं तुम लोगों को? बोला था। अब मैं पूछूंगा नहीं कि कितना कर रहे हो क्या हो, अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? एक मम्मी के लिए हार लेके जाओ, अभी कितनी तुम्हारी हैसियत है, जो भी फाइनेंशियल हैसियत है उसके हिसाब से एक गोल बनाओ, आज नहीं तो 1 साल में, 1.5 साल में, जो भी है। क्या तोला चल रहा है? 49,000 एक तोला चल रहा है। करो यार सेव, क्लब की छोड़ो, गर्लफ्रेंड वगैरह मिलेंगी, ठीक है, वाइफ मिलेगी, जो भी मिलना है किस्मत में, लेकिन माँ एक है भाई। अब जब when she can enjoy, this is her time, you should pay her back. पापा के लिए एक अंगूठी लो, you know, जाओ एक दिन सरप्राइज लेके चले जाओ, बोलो इतना बजट है, जो भी है बिंदास बोलो भाई, इतना बजट है मेरा, इतना ही दूंगा बाबा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होगा। जाओ देखो, वो बोलेंगे नहीं नहीं तू रख यार, ये सेविंग, कुछ नहीं, ले लो, ये भी एक तरह सेविंग है ना, गोल्ड इज ऑल्सो सेविंग। और बाय द वे जो तुम लेते हो ना मम्मी पापा के लिए, वो सेव करके बैठे हैं, मालूम है? हाँ। बोलेंगे नहीं यार ये इसकी शादी में मैं पहनूंगा, ये जोड़ नहीं ना, उनकी जोड़ ही चल रहा है। ये इंडियन मेंटालिटी है, साइकोलॉजी ऑफ पेरेंट्स, मैंने देखा है, ठीक है? बाकी सब बकवास है। ये तू ये 2 चीज लेके दे, चल मेरे को दिखा। ये कोई भी सुन रहा है ना, 24 लोग जो भी सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग यू टू, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बाकी सब बकवास छोड़। वर्ल्ड इकोनॉमी ये हो रहा है, ये हो, पर्सनल इकोनॉमी में ध्यान दे, इन्वेस्ट कर, डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ प्रोज्यूमर, बी एन इन्वेस्टर। यार क्या 500 रुपए के भी शेयर्स मिल रहे हैं यार, उठा, डे ट्रेडिंग मत कर, लॉन्ग टर्म लेके बैठ, उसके गेन से कुछ ले, माँ के लिए एक हार लेके दिखा। कालिया नाइस बियर बोल रहा है दोषी, वो बोल रही है या बोल रहा है पता नहीं, नहीं बोल रहा है सर, ग्रेजुएशन का फ्रेंड है। अच्छा ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरा है। अब इसको यहीं पे स्थगित करते हैं या समाप्त करते हैं? जी बिल्कुल। तेरी बीएड पे बहुत हार्ट्स आ रहे हैं भाई। नहीं सर वो छोड़ो सर, उसकी क्या बात करूं। तो ये दोनों चैलेंज है, तब तुम दोनों मिल गए, अभी फंस गए। आज तो लाइव करते हैं, रिकॉर्डेड है ये, देखता हूँ अभी। आज तेरा मीटर चालू हो गया भाई, बाय द वे, कालिया और उमेश, ठीक है? जी सर, बिल्कुल सर। मैं देखता हूँ कब करते हो। हाँ सर। एक हार नेक्स्ट टाइम तू जब आएगा ना, वो हार लाके, या तो उसकी फोटो, बहुत बढ़िया शिवानी, वेल डन, आई गेव माय फर्स्ट सैलरी टू पेरेंट्स, अभी तक लिफाफे में रखी है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि मम्मी पापा को इतना वही है, वो गोल्ड लेके दो, वो तुमको ही काम आने वाला है। By the way, it is your investment only in one way, but it's just a token of love, you know. वो मम्मी पापा के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सोने का कुछ लेकर ना। सी दुनिया में इंडियन पेरेंट्स के लिए, इंडियन मेंटालिटी के, सोना इज लाइक बहुत बड़ी, डायमंड से भी बड़ा सोना होता है, ठीक है? एक हार, सिंपल हार, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना है उतना फैलाने का, ठीक है? और एक पापा के लिए एक अंगूठी, ये 2 करके दिखाओ, बाकी सब बकवास। हाँ एक एक करके पहले एक ले लो, पहले मम्मी के लिए, मम्मी का पहले बनता है हक, सेकंड इज पापा, ये दोनों करके दिखाओ, देन देखते हैं। वंशिका बोल रही है, और उमेश क्या हाल चाल? मिश्रा बढ़िया सर, ये भी अपने कॉलेज की है। अच्छा यार, ये लोग आते तो नहीं है फोन पे, यू नो, ये डरते हैं लोग, मेकअप करना है इनको, 10 घंटे मेकअप करना है। वंशिका फिर ऑनलाइन प्लीज कम। नहीं सर, वंशिका आनी चाहिए वैसे। वंशिका आ जाओ, मेकअप वेकअप छोड़ो सर, बिटकॉइंस देते हैं ना, एजुकेट भी होंगे एंड वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगा। सही है शिवानी, तू बेच दे, तेरे एथीरियम अगर खरीदा है तो। सुपर से जा रहे। अभिषेक अभी भी देख रहा है फेसबुक पे। हाय अभिषेक, थैंक यू साहिल, वेरी नाइस एडवाइस। अरे कोई पूछ रहा है गुरु मेंटर कहाँ से ढूंढे? भाई व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अराइव्स, ऐसे बोला गया था मेरे को, ये सही बात है। जो भी देख रहा है फेसबुक में। पर एनीवेज, हम लोग करते रहेंगे रोज गाइस। आई रियली अप्रिशिएट उमेश, तू आया ऑनलाइन, तूने
कालिया को भी हिम्मत दी थोड़ी, अर्जुन को अपने। हाँ, अर्जुन को लास्ट टाइम देखा था, उसके बाल बड़े घने वने, अभी कॉर्पोरेट लग रहा पूरा। हाँ, वो चला गया ना, अब उसकी जॉब हो गई ना चालू। कहाँ गया तू, क्या कर रहा है? सर SBI लाइफ में हूँ, और सर गांव में जाता हूँ, गांव में ब्रांचेस पकड़ाई हुई है, बिल्कुल ही रूरल, जहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं होती। तो उधर बैंक ब्रांचेस में जाने का रहता है सर। कर भाई, बिंदास कर, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। सर यही बोल के आगे बढ़ रहे हैं सर। यही है भाई बाला सर का, ये याद रखो। लेकिन मेरे को ये मजा ये क्यों आ रहा है कि तुम दोनों मेरे को मिले हो और एक ही बैच के हो दोनों। एक ही क्लास भी। सही, बहुत बढ़िया। तो यार मेरे लिए कुछ भी सेवा बोलो मेरे को। मैं एक्चुअली ट्रेन राइड लेने वाला हूँ, पठानकोट से बॉम्बे जा रहा हूँ, बॉम्बे से फिर राइड करके वापस जाऊंगा। फैमिली को, पेरेंट्स को भी मिलके बहुत समय हो गया, तो देखते हैं कोई स्टेशन पे कोई मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। या जैसे तू भोपाल पे, अगर भोपाल पे वो ट्रेन रुकती तो वो स्टेशन पे लाइव करेंगे और बोलूंगा भाई भोपाल आओगे तेरी नगरी। देखते हैं, हर रोज लाइव करूंगा। एनीवे तो 24 आवर की जर्नी है, इतना भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे बोलना, हर रोज लाइव करोगे तो। हर रोज लाइव करने वाला हूँ मैं। जिसको बकवास लगे बोलने दे, गालियां देने दे, ये अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी दिल में भड़ा से वो बाहर आ जानी चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, पता नहीं किसका कुछ भला हो जाए यार, कोई सुन ले। हम जैसों को सीखने को बहुत मिलेगा। नहीं भाई, तू तो क्या, तू क्या सीखेगा? तू 3 गर्लफ्रेंड पटा के घुमा रहा है, तू क्या सीखने वाला है? तू कौन अर्जुन ना? नहीं, अरे अर्जुन गाँव में भी, रूरल एरिया। अरे भाई यार, अर्जुन तू है कहाँ अभी? अर्जुन सर चंडीगढ़ में ही हूँ, पंचकुला में हूँ। और जो सर मेरी जॉब लोकेशन जो ब्रांचेस दी हुई है वो ना पंजाब में सिरहिंद, पता है, पटियाला के साइड में पड़ता है सिरहिंद, वहां पे जाके कुछ गाँव है सर। मतलब छोड़ो सर, वो तो डिप्रेशन। सही नहीं, अच्छा है। लेकिन तू यार कभी धर्मशाला आ यार, यहाँ पे मिलने आ। हाँ सर, हिमाचल अब कम ही चक्कर लगता है, बट देखते हैं। तू वेयर आर यू फ्रॉम इन हिमाचल? वेयर आर यू फ्रॉम? चंबा ना? चंबा बेसिकली। चंबा से हमारे 3 टीम मेंबर्स चंबा से, पल्स प्ले में। अरे नाइस। और सबकी बड़ी खेतियां, और वो सब जो भी चंबा में होता है ना, वो धान की ये वो सब खेतियां हैं। पंचकुला कहाँ? भूपिंदर पूछ रहा है। भूपिंदर इज 27। हाँ, भूपिंदर इज फ्रॉम आटी। सिरहिंद में जो गाँव है सर, वो भूपिंदर बोल रहा है कोई नहीं मेरे साथ चलना। बुलाते नहीं सर। अरे शिवानी तुम भी आ जाओ धर्मशाला, तुम्हारे पूरे गैंग के साथ, टीम के साथ आओ, पूरे बैचमेट्स एंड कम विद योर फैमिली, कम विद योर पेरेंट्स। आज मेरा हैंगओवर उतरा नहीं है। ठीक है वंशिका, नींबू पानी पी ले। सही है भाई, अच्छा है। भूपिंदर बोल रहा है रूरल एरिया में। अभिषेक अभी भी देख रहा है फेसबुक में। सही है भाई। तो ये बॉस, तुम लोग कुछ मजा आ रहा है इसमें सेशन में? मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मेरे को तो मजा आ रहा है यार। हाँ सर सही है। आज तो मजा आया, कल देखते हैं। कल की देखिए। मतलब वो ये कि कोई हम जैसा कोई, अगर आप रोज एक बकरा पकड़ लो तो अच्छा हो जाए। अरे बकरा मैं कसाई लेके बैठा हूँ, कोई आए तो करने को। कोई आने को तैयार नहीं है। ठीक है, गोयल शिवानी बोल रही है यस, पता नहीं अभी आएगी कब आएगी। वर्डली ऑनलाइन तो आओ, पहले चेहरा दिखाओ, कोई है कौन, बोल कौन रहा है। कुछ भी ये लोग बनाते हैं अपना ना, फोटो वोटो लगा देते हैं, लड़की का पूरा डीपी लगाया और लड़का पीछे बोल रहा होता है नो कुछ। बहुत देखे ऐसे। बट एनीवेज मजा आया। अरिजीत सरकार तुम भी आओ, ऑनलाइन आ जाओ, 4 लोग हो सकते हैं। कालिया को परमानेंट कर लो। अरे कालिया तो भाई वंशिका ने रिक्वेस्ट की है, देख कालिया। नहीं सर, बस ठीक है सर, मैं देखते हैं सर अभी तो। वो भी हैंगओवर के आलम में बोल रही है, सच निकल रही है उसके दिल से।
मैं तो पीता नहीं, आई एम हाई ऑन लाइफ। मैं भी नहीं सर। तो मैं भी कहाँ से? अर्जुन कालिया सर बिग फैब हैं, बिग फैन फैन। फैन वंशिका बात है यार, अर्जुन। कालिया मिश्रा क्या बोल रही है? अरे सर कुछ नहीं, आप देखना अभी ये कल ऑनलाइन आएगी ना सर जब लाइव, तो देखना सर ये ऐसे ही करती है। भाई राखी कब है? राखी रक्षाबंधन कब है भाई? भाई दूज तो निकल गया। आशीष नहीं बोल सर। रहा है हेलो, अर्जुन इज ऑन डिमांड। स्टेफी पूछ रही है, स्टेफी साहू अमन, यार अमन अपना ये रॉकस्टार है ना? यस जी, सर। जी। हाँ उनको बुलाओ, अमन सर आओ ना जरा आप। अमन वर्मा, अमन चल तू तो आ, गिटार विटार लेके आ, ड्रमर। कुछ तो बजा। ड्रमर अमन, अमन सर आओ। नहीं बहुत बहुत बढ़िया है अमन तो यार, अमन का देखा मैंने, वो शो देखा है उसका। सर इतनी वीडियो कॉल्स करते हैं ना, मतलब ही मतलब इनकी डिमांड ही अलग है मार्केट में अमन सर की तो। भाई अमन इज अमन यार, अमन इज अमन। अमन इज चैन, अमन चैन यार। ये टुमारो भी कैसे सर टाइम पास करते हैं यार। देख अमन एक काम करते हैं, देख तू और वो दूसरा तेरा दोस्त भी था ना, दूसरा और एक रॉकस्टार है कोई, क्या है वो कलकत्ता वाला? शिवम सर शिवम ना, सक्सेना की बात कर रहा जो है, गिटार बजा रही। सक्सेना ना। हाँ शिवम सक्सेना। हाँ हम लोगों ने क्लास में ये नीले नीले अंबर गाया था हम लोगों ने, पता नहीं किसने रिकॉर्डिंग की हो, तो कोई भेजो यार वो फुटेज। शिवम वो बैंड शिवम जाके अपना ये लेके आया था, शिव सक्सेना करेक्ट। अमन तू भी था क्या वो क्लास में? याद है मेरे को तुम लोगों ने वो, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर, नीले नीले अंबर हम लोगों ने गाया था क्लास में। वो किसी के पास है फुटेज वो क्या? Guys, we are joined on, there are 31 people right now live for I don't know 100 hours. मैं बोल रहा हूँ मार्क जकरबर्ग का फोन आने वाला है, बोले दीपक साले तू पूरा मेरा बैंडविड्थ खींच रहा है, पूरे सर्वर पे स्पेस तेरा ही जा रहा है, रोज टाइम पास बकवास कर रहा है तू 2-3 लोगों को लेके। देखो सर अमन सर का मैसेज आ रहा है। पूछना शिव को, सर अमन सर का मैसेज आ रहा है कि अभी मैं अच्छा नहीं दिख रहा। क्या यार, बताओ, मजाक बताओ। है। मैं देखी इधर कैसे बैठे, कुछ नहीं यार। अमन का जरा एक उसका एक बैंड बजाएगा तो डजंट मैटर लुक फुक है यार। अमन तू देख, शिवम को पूछना जरूर वो वीडियो के बारे में यार। आई रिमेम्बर वो हमने किया था, नाचा डांस किया था हम लोगों ने, गाना गाया था एक्चुअली प्रॉपर। और अमन ने क्या ना, इंटरवल में जाके हॉस्टल से वो उसका बाजा गाजा डब्बा लेके आया था, वो बॉक्स पूरा। मुझे पता नहीं ये लोगों को याद है या नहीं है। वंशिका पूछ रही है अमन सर कल अच्छे दिखने लगेंगे क्या? सही है। अच्छा ये तुम लोग को मालूम नहीं है, दूसरा अमन को मिला था मैं एक बार कैंटीन में ना अपने हॉस्टल के। हाँ सर आर्टिस्टिक लोग हैं सर, क्रिएटिव लोग हैं अमन सर वगैरह। वंशिका बहुत एक्टिव, वंशिका कालिया मयूर चंद करके दिखा दे, ये क्या है भाई? पता नहीं। ओ अरे यार नहीं सर वो अय्या स्वामी की बात कर रही है आई गेस। अच्छा। सही है, मजा आ रहा है। ये जो तुम्हारे अभी जूनियर सीनियर बैचमेट देखेंगे तो मजा आएगा उन लोगों को ये वीडियो देखेंगे। चलो अभी बहुत हो गई मजाक मस्ती, और क्या मेरे लिए कुछ सेवा? नहीं सर बहुत, बाकी आपको कॉल करके और 2-3 चीजें पूछेंगे बाद में। सर और विंटर मेरे से बन पाता है पूछ ले। सर और विंटर चल रही है सर, तो वहाँ पे हिमाचल में थोड़े सेब वेब अच्छे हैं, तो सर बताओ भिजवाओ जरा सर थोड़े। भिजवाते हैं, पोस्टल एड्रेस भिजवाता हूँ। हाँ सर भेजता हूँ एड्रेस, डीएम करता हूँ। सच्ची भेज दूंगा, देख मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ कोई सीन नहीं सर, मैं भी फिर आऊंगा धर्मशाला, तो कभी ना कभी तो लगेगा ही चक्कर। पहले रहा हूँ धर्मशाला, आधुनिक पब्लिक स्कूल में था मैं, सिद्धबाड़ी में जो है। अरे भाई तू तो फिर धर्मशाला का है, तू सिद्धबाड़ी तो इधर ही है। आई यूज्ड टू लिव इन कोतवाली बाजार।
अरे यार कोतवाली तो इधर 6 मिनट दूर है मेरे घर से। हाँ। कोतवाली में रह रहा हूँ, रामनगर में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, अरे नाइस। रामनगर में नंदिनी विला है ना, वहीं पे वो आंटी जी की है प्रॉपर्टी, और मेरे इन लॉज की साइड से वो पूरी प्रॉपर्टी है वो। उनकी भी हमने लाइव की रिसेंटली। प्रसन्न संत बोल रहे हैं नमस्कार, क्या हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर प्रसन्न। सही है, सही है। चलो ठीक है यार, अच्छा लगा। सब लोग स्वस्थ है, मस्त है, और सेफ रहो। मैं पूना का चक्कर लगा रहा हूँ, कोई है पूना में तो मिलो। ऐसे भी एनीवेज मैं आता रहूंगा वर्चुअली एवरी डे, कभी डिनर पे, कभी ऐसे वैसे। तुम लोग भी कुछ खाते वाते भी आ जाओ, कुछ पूरा इनफॉर्मल रहेगा ये सेशन, मजा आएगा, जैम करेंगे तो मजा आएगा। कालिया तुम अपने ग्रुप को पकड़ो, डिजिटल वाले ग्रुप को, सबको मैं देखना चाहता हूँ क्या सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ सर, पराग पार्थ वगैरह। आई नो। अतुल, हाय अतुल, वुड लव टू जॉइन सर वंस। अरे आजा तू। जी सर ठीक है। हाँ वंशिका ठीक है, जी सर बढ़िया है। अरे अभी वो बम्बानी सर का ये हुआ था ना, वो मेमोरियल सर्विस, अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे। सो जी सर दिखे पड़े होंगे ऑनलाइन, वही कर रहे थे होस्ट ना। यू मस्ट हैव सीन हिज ऑनलाइन दिस थिंग। और क्या बाकी एक ऐसा कभी सेशन करेंगे कि ना सिर्फ आपकी बैचेस का। अभी तो आप लोग सब अलुमनाई हो गए हो ना, करंट स्टूडेंट तो नहीं हो। सागर में कल का बोल नहीं सकता यार, मैं इवनिंग में आऊंगा शायद। फेसबुक में पूछ रहा है सागर। अच्छा एक रिक्वेस्ट भेजिए भाई, कौन है? अतुल आ रहा है घर। अच्छा एक्सेप्ट किया अतुल। नहीं मैं कह रहा था कि एक सेशन ऐसे करते हैं, जो भी अलुमनाई है, टूटे दिल की बातें। हाय सर, अतुल फ्रॉम BIB 2017-19 बैच सर। कौन अतुल, कौन से बैच से हो? 17-19 बैच सर, BIB। ओहो सीनियर साहब। हाँ जी सर। आओ आओ। तो सर अभी मैं देखा नोटिफिकेशन आपका चल रहा था, तो मैं बोला कि एक बार ज्वाइन करता हूँ सर। कभी किया नहीं पहले ऐसे, मतलब आप लोगों से बात किया नहीं, तो मैं बोला कि एक बार ज्वाइन करता हूँ सर। अरे बिंदास यार। शादी हुई कि नहीं तेरी? नहीं सर, शादी का बात चल रहा है सर। शादी का मतलब 2022 में हो जाएगा सर। सही है, याद रखना। हाँ जी सर, जरूर सर। वेडिंग कार्ड सबको आना चाहिए। डेफिनेटली सर। आप लोग कितने लोग आएंगे वो मैटर करता है सर। मैं तो सबको लेके आना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरा क्राउड ज्यादा रहेगा तो मेरा पलड़ा भारी रहेगा, तो मैं तो चाहूंगा कि सब लोग आए। नहीं तेरा लाइव चला देंगे। एक कालिया पहुंचेगा वहां पे, कालिया लाइव करके 4-5 लोगों ले लेगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और हम टेक्नो वाले हैं, हमें भी बुलाना। मिश्रा कह रही है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सही है। लड़की कहाँ की है? मिश्रा बोल रही है, हंस रही है। 3-4 ऑप्शंस हैं। भाई ये कमाल है। जीवनसाथी.com, शादी.com, चाचा जी के पंडित जी.com। नहीं मतलब सर उधर नहीं होता है सर। मैं उड़ीसा से आता हूँ सर, तो उधर ये सब होता नहीं है। मतलब लोकली अवेलेबल हो जाता है सर। मार्केट में नाम होता है पिताजी का, फैमिली का, तो उसी में ही आ जाता है मतलब रिश्ता वगैरह सर उधर। सही। अभी कर क्या रहे हो अतुल? काम क्या कर रहे हो? सर अभी बेंगलुरु में हूँ सर। मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग हाउस में काम करता हूँ सर। तो सारे इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, इसलिए मैं बीच में आपको एक बार रीच भी किया था सर। कुछ होगा तो मैं करूंगा जरूर करके। करेक्ट। मेरे को यार एक्चुअली ये अपना पल्स प्ले का एक क्लाइंट बन रहे हैं। ही इज अ वेरी सीनियर पार्टनर। ही सेल्स, हाँ जी सर। ही इज आई थिंक वन ऑफ द टॉप 5 इन टाटा AIA। AIA सर और AIG? AIA। ओके सर, ओके सर। तो वंशिका मिश्रा बोल रही है उमेश के लिए भी ढूंढ को। अरे सर देखो सर, कितनी शरीफ है सर। वंशिका को लगता है कि उमेश ने ढूंढा नहीं है कोई। है। ये देखो, ये जब तक आप लोग ऑनलाइन ऐसे नहीं आएगा ना, जैसे अतुल, अर्जुन और उमेश आए, मैं किसी की बात को भरोसा नहीं है। ऐसी टाइम पास में रीड कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव एनीबडी हु इज टाइपिंग एनीथिंग, बट एनीवेज आई एम रीडिंग। जब तक तुम सामने ऐसे आके बात नहीं करोगे, तुम्हारी बातों को भरोसा नहीं किया जाएगा। सही है। चलो अच्छा चला सेशन। हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे लिए कुछ हो तो बताना, जो भी हेल्प कर सकते हैं।
जरूर सर। बढ़िया है, चलता रहेगा अपनी ये सेशन, और चलाएंगे इसको, जमाएंगे। और यार अमन अगर सुन रहा होगा, कालिया अमन को, उमेश अमन को फोन करना, बोलना भाई एक लाइव तेरा रॉक बैंड सेशन लेंगे, शिवम और तेरा। जी सर, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सर। पहले अनाउंस कर देंगे ताकि लोग और पब्लिक और आए अगर, लेकिन वही प्लान करना पड़ेगा अपने को, कोई एक दिन लेके ना। हाँ वीकेंड पे यार, वीकेंड पे करेंगे। हाँ, जब भी जाता अमन सर नहीं भी ऑनलाइन भी है शायद, देख भी रहे। अमन आएगा, तू शिव से बात कर। और कोई गाना गाता है या गाती है तो उनको भी लाओ। वंशिका गाती है ना सर, वंशिका। हाँ सर, वंशिका बहुत अच्छा गाती है। नहीं मिश्रा ऐसी नहीं है। मैं, अच्छा तू उमेश को बोल रही है? नहीं आपको ही बोल रही सर, आपने बोला ना आप विश्वास नहीं करोगे जब तक लाइव नहीं आओगे। अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट। नहीं करूंगा, तू आ तो सही लाइव, फिर देखते हैं। कम ऑनलाइन एंड देन विल टॉक। अतुल और बता। और सब बढ़िया सर, बस वही ज्वाइन कर लिया सर, बस बैठा हुआ था सर। चल अच्छा किया यार। वो बोलते ना, यू शुड नेवर सिट ऑन द फेंस। सर एक छोटा सा क्वेरी पूछ रहा था बस। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2-3-4 दोस्त लोगों ने मनाली का प्लान किया था सर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। तो ओमिक्रॉन के लिए हमने कैंसिल कर दिया। तो अभी कमिंग मिड ऑफ जनवरी में कर सकते हैं या अभी नहीं करेंगे, बाद में करें सर? कुछ उधर क्या है हिमाचल में सर स्टेटस? यार अभी तो हिमाचल में इतना फैला नहीं है, बट टूरिस्ट तो आ भी रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हाँ जी सर। मेरे दृष्टिकोण से तो यार, मैं पापा मम्मी को इमोशनल रीजन के लिए पुणे जा रहा हूँ। एक हफ्ता 10 दिन में पुणे जा रहा हूँ फैमिली लेके। हाँ जी सर। तो मैं तो जा रहा हूँ, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। हाँ वंशिका, ट्रेन करते हैं ऑनलाइन। दृष्टि का तुम लोगों को मैं स्टोरी बोलूंगा। फर्स्ट दृष्टि कैसे हम लोग ने ऑर्गेनाइज की थी, और दृष्टि का नाम कैसे दिया मैंने। दृष्टि का नाम मैंने दिया, मालूम है आप लोगों को? नहीं सर, अभी पता चला। नहीं, ये तो अभी पता चला। दृष्टि का उसमें स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को, कैसे दृष्टि, जब ये लोग हमारे रॉकस्टार्स लोग परफॉर्म करेंगे, मैं बताऊंगा तुमको दृष्टि की स्टोरी। फर्स्ट दृष्टि कैसे ऑर्गेनाइज की हम लोगों ने, और दृष्टि नाम कैसे पड़ा। चलो ठीक है। वंशिका ने एटलीस्ट बैलेंस कर रखा है जेंडर का, एटलीस्ट। नहीं तो सब ये बॉयज ही हैं यहाँ पे। एटलीस्ट शी इज एक्टिव, लेडीज शुड बी एक्टिव यार। वी शुड डू अ लिटिल बिट मोर इनफॉर्मल सेशंस करेंगे हम लोग। एक बार ना मे बी एक सेशन ऐसे लेंगे कि शादी की तैयारियां। मतलब what is people's belief today in a institution like शादी। कल परसों आराम से फिर बात करेंगे। ठीक है बॉस? हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और धर्मशाला, तेरे को अगर एप्पल चाहिए तो मेरे को सच में एड्रेस भेज दे, मैं भिजवा दूंगा। हाँ सर, यस सर। मेरे को मालूम है तू धर्मशाला में रह के गया, तो एप्पल हैज अ डिस्टिंक्ट टेस्ट जो यहीं पे मिलेगा, इसी रीजन में। तेरी दिल की गहराइयों से जो निकल रही है उमड़ के, मैं समझ रहा हूँ कालिया। पता चला यहाँ पे सिद्धबाड़ी में इसकी गर्लफ्रेंड पड़ी है 2-3। अरे नहीं तभी तो आपको बोल रहा है, खुद नहीं आ रहा बस। हाई स्कूल क्रश होता है ना, हाई स्कूल क्रश। अरे पपी लव। आजा। जब धर्मशाला आएगा, चेक इन किसके साथ करता है ये। स्नैप में इसको फॉलो करेंगे, इसको स्नैप में इसका दिखेगा ना पूरा प्रिंट, किसके साथ जुड़ रहा है ये। चलो टेक केयर बॉस। अब बहुत अच्छा मजा आया यार। हम लोगों ने तो सीरियस नोट शुरू कर दिया, तुम लोगों ने पूरा इसका दिशा ही बदल दी थी, लेकिन अच्छा लगा। वी नीड टू डू दैट। तो अमन को, कालिया उमेश, अमन को पकड़ और शिवम को पकड़, पूछ उनको करना है तो ऑनलाइन कुछ ब्रांड बैंड करेंगे कि पहले ही अनाउंस कर देंगे, ताकि और बैचमेट्स और जो भी आना चाहता है कैन जॉइन, है ना? ओके, बताना पक्का मेरे को। जी। चलो बॉस, थैंक यू अतुल फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो। उमेश, कालिया, थैंक यू बड़ी, वंशिका, पिंदर, कशिश, वंशिका मिश्रा, आयुषी अग्रवाल,
रौनक कालिया, साईनाथ आचारी, कांची रेजा, सौरभ कुमार ठाकुर, मृदुल श्रीवास्तवा, ऋषभ खडेर, रवि सिंह। धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय बाय। टेक केयर, चलो, लव यू गाइस, बाय बाय बाय।